so much for coming in. Today is going to be a very interesting evening. We are going to learn trading. We are going to learn short-term trading. We are going to learn intraday, intra-week trading. We are going to learn swing trading. And for those who are quite new, those who don't know me, those who have not attended my sessions yet, I will tell you about investing also. Everything today in another 90 minutes. I assure you that. Or you can attend the sessions that happens on Sundays. This Sunday being a Rakhi weekend, I am going home. So I won't be able to take a session on this Sunday. Otherwise, every Sunday, I try to take up a new session for beginners as well. All right. So these are the results. Let me stop sharing results. All right. And let's start. All right. So today, let's start with trading and then we'll go to investing. How many of you are comfortable with charts? आप में से किस किस लोगों ने charts देखे हुए हैं, charts के बारे में पता है? Let's launch a poll for this also. It will be easier for us. So here we go. Let's understand charts. Take this poll, guys. Those who are completely new, जिनको पता नहीं है charts क्या होता है, वो उनके बारे में मैं पता करना चाहता हूं कि कितने लोग ऐसे हैं, so that I'll give a very brief introduction about charts. Now guys, charts are something which tells us what's the price action doing. चार्ट से हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं करते हैं. तो एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं एनालिसिस. एनालिसिस कैन बी फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शन एनालिसिस, ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस, ऑल दीज थिंग्स, राइट. जो न्यूज में जो न्यूज देख के ट्रेडिंग करते हैं वो भी एक तरह से एनालिसिस होते हैं, बट वो किसी और पे डिपेंड होते हैं. ऑलराइट, एनालिसिस सब कुछ नहीं होता है. इफ आई एम टीचिंग यू हाउ टू रीड चार्ट्स, राइट, तो मैं आपको बस ये दिखाना चाहता हूं कि प्राइस एक्शन कैसे चलता है. मैं कोई एनालिसिस नहीं सिखा रहा हूं. तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट चार्ट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टेक्निकल एनालिसिस. फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए जैसे बैलेंस शीट चाहिए होता है, वैसे टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए चार्ट्स चाहिए होता है. सो वी नॉट गो डीप इनटू इट. ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट how to understand the price action, how to understand what the stock is doing, and how should we go about it. Should we buy the stock or sell the stock? All right, so I'll go quickly with the charts. Thode chota I'll learn the charts. I've got the results. Many of us are comfortable. 70% of us are comfortable with charts. All right, so let's go. All right, here we go. Where's my marker? This is my marker. All right, रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल. संदीप जी आपके लिए तो जान भी हाजिर है. रिकॉर्डिंग हो रहा है. यू विल गेट दिस रिकॉर्डिंग, डोंट वरी. ऑलराइट, चलो. सो ऑन चार्ट्स व्हाट वी सी इज कि चार्ट्स में ना एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है. सो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. वाई एक्सिस पे हम प्राइस को प्लॉट करते हैं और एक्स एक्सिस पे हम टाइम को प्लॉट करते हैं. ऑलराइट, तो लेट्स से कि जून मंथ में this is June, all right. Let's say year 2020, all right, or 1st June को let's say price was 400, okay. 400 पे close हुआ था. Neil ji, I am not sure. I think audio is fine. Yes, so please check your settings. Yes, Yatin ji, thank you so much. All right, so let's say 1st June को the price closed at 400. Close मतलब कि 400 रुपए पे ये बंद हुआ था. सो एट 330 इट क्लोज्ड एट 400. ऑलराइट, 2nd June को इट क्लोज्ड एट 410. ऑलराइट, एंड ऑन 3rd June इट क्लोज्ड एट लेट्स से 405. ओके, राइट. तो अब हम इसको प्लॉट भी कर सकते हैं. प्लॉट कैसे करते हैं कि 1st June को, सो दिस इज 1st June. ऑलराइट, द स्टॉक प्राइस वाज एट 400 रुपीज. ओके, तो यहां पे मैंने एक डॉट लगा दिया. 2nd June को इट वेंट अप 410 एंड 3rd June को इट वाज एट 405. जब मैं ये डॉट्स को ज्वाइन कर दूंगा, आई विल गेट अ लाइन चार्ट. व्हाट डू आई गेट? अ लाइन चार्ट. लाइन चार्ट सिर्फ एक डेटा पॉइंट कैप्चर करता है. सो सिर्फ वन डेटा पॉइंट इज कैप्चर्ड on the line chart, which is the closing price. I mean, आप चूज भी कर सकते हो, हाई भी चूज कर सकते हो, लो भी चूज कर सकते हो, बट लाइन चार्ट सिर्फ एक डेटा पॉइंट कैप्चर करता है.
ऐसे 3 और डेटा पॉइंट्स होते हैं. सो देयर आर 4 डेटा पॉइंट्स व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड. ऑलराइट, जिसे हम बोलते हैं OHLC, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज. ऑलराइट, 4 डेटा पॉइंट्स को अगर मुझे 2D चार्ट में, सो इफ आई वांट टू प्लॉट 4 डेटा पॉइंट्स ऑन अ 2D चार्ट, I need to understand candlesticks. All right, so let's take up this another example. Let's say that open on 1st of June. अभी मैं सिर्फ 1st June की बात कर रहा हूँ. It opened at let's say 380 rupees. Don't mind my handwriting. कोई भी टीचर आज तक मेरी handwriting नहीं सुधार पाई. All right, so it opened at 380 rupees. It made a high of let's say 410. It made a low of let's say 370. And it closed at 400. जैसे कि हमने पहले वाले एग्जांपल में करा था कि हमें सिर्फ एक डेटा पॉइंट मिल रहा था 400 का. So we got these 3 additional data points, so total 4 data points: open, high, low and close. All right, so if I look it on the y axis, so 380 would be somewhere here, 370 उससे नीचे होगा और 410 ऊपर होगा. ठीक है, अब मुझे अगर ये 4 डेटा पॉइंट्स ऑन अ 2D चार्ट प्लॉट करना है, सो मेरा जो 380 है यहाँ पे एक बार बनेगा, क्लोज्ड एट 400 ये मेरा बार बनेगा. ऑलराइट, जब मैं इसको ज्वाइन करूंगा मुझे कैंडलस्टिक की रियल बॉडी मिल जाएगी. तो कैंडलस्टिक हैज अ रियल बॉडी, ओके, व्हिच इज द डिफरेंस बिटवीन द ओपन एंड द क्लोज. ऑलराइट, अब इसने रियल बॉडी से कितना ऊपर गया, व्हाट हाई डिड इट मेक, 410. तो यहाँ पे this will be 410. That's the high. It opened at 380, okay, and it closed at 400 and made a high of 410. और लो कितना मारा, 370 का. तो रियल बॉडी से जितना नीचे जाएगा that will be the low. So candlestick has 3 components. One which is known as the real body. This one is the real body, upper shadow and lower shadow. Real body is always the difference between open and close. Real body से कितना ऊपर गया, that's high. Real body से कितना नीचे गया, that's low. All right. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, in this particular example, is this stock ऊपर बंद हुआ कि नीचे बंद हुआ? Did the stock go above or it fell down on 1st of June in this particular example? ऊपर के नीचे, above. Shubham ji says above. Fell down. Deepak ji says fell down. कैसे? It opened at 380, closed at 400. So it went ऊपर. दीपक जी ठीक है, 380 रुपए पे खुला, 400 रुपए पे बंद हुआ, तो ये ऊपर गया. Since it closed ऊपर, तो हम कहेंगे कि ये जो कैंडल है ये ग्रीन कलर का होगा. ओके, दिस विल बी अ ग्रीन कलर कैंडल. अगर हम एग्जांपल चेंज कर दे कि ओपन 400 पे हुआ था और क्लोज 380 पे हुआ था, तो सेम साइज का कैंडल बनेगा, बट नाउ इट विल बी रेड कलर कैंडल. क्लियर एवरीवन? यस, नो, मे बी. लेट्स गो ऑन, लुक एट द चार्ट्स. हम जाएंगे, मैं आपको एक बढ़िया सी वेबसाइट पे इंट्रोड्यूस करता हूं. सो tradingview.com. we'll go to tradingview.com. all right, so this is tradingview.com. all right, इधर आप कोई भी एक अच्छा सा स्टॉक सर्च करो. गिव मी एनी गुड स्टॉक, एनी गुड स्टॉक, कोई भी अच्छा सा प्यारा सा स्टॉक. रिलायंस को छोड़ के, वो तो पता है सबको. ऑलराइट, लेट्स टेक अप एसीसी. सीमेंट सेक्टर इज डूइंग गुड. रिसेंटली सारे सीमेंट सेक्टर बहुत अच्छे अच्छे लेवल्स पे आ गए हैं. दे हैव रिकवर्ड क्विकली वेल. ऑलराइट, तो इफ आई टॉक अबाउट एसीसी, एसीसी का मैंने यहाँ पे सर्च करा, आई गॉट टू दिस पेज. ठीक है, इस पेज पे मैं जाऊंगा फुल फीचर्ड चार्ट पे. वे विल आई गो फुल फीचर्ड चार्ट. तो एक ऐसा सा पेज खुल जाएगा. ऑलराइट, लेट्स हाइड एवरीथिंग. ओके, लेट्स गो ऑन टू द डेली चार्ट. ऑलराइट, ऑन द राइट हैंड साइड आप देख सकते हैं कि मुझे सारे जो एसीसी का डेटा मिल रहा है. ऑलराइट, नाउ इफ आई गो हियर, चेक ऑन दिस डेट, ओपन, हाई, लो, क्लोज, मुझे सारा कुछ पता चल रहा है. ओके, तो इफ आई आस्क यू कि इस दिन ऑन दिस पर्टिकुलर डे, ये कौन सा दिन का चार्ट है, ये कौन सा दिन का प्राइस है, जहां पे मैंने कर्सर रखा हुआ है, ये कौन से दिन का कैंडल है? दैट इज, व्हिच इज द डेट? 19 जून. वेरी गुड एवरीवन. ऑलराइट, सो व्हाट वाज द ओपन? व्हाट प्राइस डिड इट ओपन?
On 19th of June, ACC कितने पे खुला था? That's 1252. Very good, everyone. And closed at what price? I want everyone to type in, guys. Let's make it interactive. मजा आएगा. What price did it close? It closed at 1272. Very good, guys. तो अब आप देख रहे हो कि ये ओपन हुआ 1252 पे एंड क्लोज्ड एट 1272. दैट मींस ये बढ़कर बंद हुआ है. तो ये ग्रीन कलर का बार है. यहाँ पे जहां पे मैंने कर्सर रखा हुआ है, दैट इज अ ग्रीन कलर बार. ऑलराइट. एंड हाई कितना बनाया, लो कितना बनाया, ये हम सब देख सकते हैं. तो सबको अगर कैंडल सिक्स, बस इतना ही करना था चार्ट्स में. अगर सबको ये चीज क्लियर हुई तो जोर से लिख दो जय माता दी, ताकि हम आगे बढ़े. I hope this is clear to everyone, all the new and old guys, experienced and inexperienced guys, because I am not trying to predict anything. I am not trying to analyze anything. All I am saying is कि stock कर क्या रहा है, वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है. That's all I need to do, and that the only thing which shows is the charts. तो हम charts करेंगे, हम technical analysis नहीं कर रहे, हम fundamental analysis नहीं कर रहे. ओके अगर विंडो फ्रोज हो गया है निखिल जी, तो बेस्ट वे इज कि गेट आउट एंड गेट इन बैक. तो स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर दो, आप वापस आ जाओगे. ऑलराइट, चलो. सो दिस वाज द बेसिक ऑफ कैंडलस्टिक्स व्हिच वी नीडेड टू लर्न. ऑलराइट, नाउ लेट्स गेट टू ट्रेडिंग. सीधा सीधा ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग बाद में आएंगे. ऑलराइट, नाउ गाइस टेल मी वन थिंग. एक स्टॉक है, ठीक है, वो ऐसे मूव कर रहा है. Let me draw a line chart of that particular chart. Okay, right? ये कोई भी टाइम फ्रेम हो सकता है. This can be 5 minute, 1 minute, 1 day. कोई भी टाइम फ्रेम हो सकता है. टाइम फ्रेम मतलब जैसे अभी जो हमने एग्जांपल करा, उसमें हमने जो टाइम फ्रेम लिया था वो डेली का लिया था, कि एक दिन का डेटा बताओ कि आज कितने पे ओपन हुआ, हाई कितना बनाया, लो कितना बनाया, क्लोज कितने पे हुआ. So the example we took was on the daily time frame. This can be done in 5 minutes also, 10 minutes also, and 60 minutes also, whatever time frame you want to get in. All right, जब हम इसका थोड़ा और प्रैक्टिकली करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा. All right, चलो. So suppose ये स्टॉक ऐसे नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद it started to rise. All right, okay, so it started to rise like this. All right, now this is a red zone and a green zone. अगर आपने बाय करके चलना है तो आप कौन से जोन में प्रेफर करोगे? Which zone will you prefer, the red zone or the green zone? अगर आप बाय करके चल रहे हो, so we are talking about short term trading. It can be intraday, it can be 2-3 days, it can be 4 days. हम किस में बाय करना चाहेंगे, ग्रीन जोन में कि रेड जोन में? Alright, so it has to be that first of all we need to make sure कि स्टॉक जो है वो हमारी डायरेक्शन में चल रहा है. राइट, सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि स्टॉक ऊपर नीचे करता रहता है. हमें ये पता होना चाहिए कि हमने कौन से जोन में ट्रेड करना है. ऑलराइट, सो जो लोग रेड और ग्रीन, सो इट्स लाइक जो रेड और ग्रीन दोनों बोल रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू पिक द बॉटम. वो कह रहे हैं कि मुझे ये वाला बॉटम पिक करना है. ऑलराइट, we'll get you the bottom also, don't worry about that. But for now what we need to understand is कि अगर स्टॉक नीचे गिर रहा है, इसको बाय करने का कोई फायदा नहीं है. हम इधर घुसने की कोशिश करेंगे, हमारा लॉस हो जाएगा. हम इधर घुसने की कोशिश करेंगे, हमारा लॉस हो जाएगा. इफ वी आर बाइंग, ऑलराइट, हम इधर घुसने की कोशिश करेंगे, हमारा लॉस हो जाएगा. बट यही चीज अगर मैं इधर घुसने की कोशिश करूं, या फिर यहाँ पे घुसने की कोशिश करूं, या फिर यहाँ पे घुसने की कोशिश करूं, तो हमें प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा है. सो इफ यू आर लुकिंग टू बाय, वी हैव टू गेट डाउन टू द ग्रीन जोन. हमने उन स्टॉक्स में ट्रेड करना है जो ऐसे ऊपर जा रहे हैं. इफ यू आर लुकिंग टू बाय, इफ यू आर लुकिंग टू शॉर्ट, तो हमने इस जोन में ट्रेड करना है. अब आप सारे बोल रहे होंगे ये समझ आ गया, आगे चलो जल्दी बता कि ये जोन फाइंड कैसे करे, है कि नहीं? किस किस के मन में ये फीलिंग आया? टाइप इन यस, कि फटाफट बताओ अब फाइंड कैसे करें ग्रीन जोन एंड रेड जोन. एनीवन जिसके मन में आया कि चुप कर आगे चल, समझ आ गया ये कि कहाँ कहाँ बाय करना है. ऑलराइट गाइस, सो इट्स लाइक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमने ये रेड जोन में ट्रेड नहीं करना है अगर मैं बाय करके चल रहा हूं.
ओके और ग्रीन जोन में ट्रेड नहीं करना है अगर मैं शॉर्ट करके चल रहा हूं। ऑलराइट, नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ग्रीन जोन कौन सा है और रेड जोन कौन सा है। ठीक है, वो आपके सामने भाइयों और बहनों आ रहा है आफ्टर 5 मिनट्स, क्योंकि उससे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग एल्स जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। ऑलराइट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इन स्टॉक मार्केट। आई ऑलवेज से स्टॉक मार्केट इज नॉट एनालिसिस, stock market is all about maths, stock market is all about quants, stock market is all about number, it's not about ये स्टॉक भागेगा कि ये स्टॉक गिरेगा, इट्स अबाउट कि जो स्टॉक भाग रहा है उसमें कब घुसना है, ये स्टॉक गिर रहा है तो उसमें कब निकलना है। वी हैव टू रिएक्ट, वी डोंट हैव टू प्रेडिक्ट, वी गेट इनटू एनालिसिस। एनालिसिस आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए करना चाहिए, टू फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे आपको घुसना चाहिए। राइट, उसके बाद एनालिसिस का कोई काम या महत्व नहीं रह जाता है। ऑलराइट, नाउ दिस इज अ वेरी सिंपल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंग्स कि लाइफ में हमेशा पैसों के मामले में या किसी भी मामले में इट्स ऑलवेज गिव एंड टेक। राइट, कि हम पैसा या तो लेते हैं या पैसा देते हैं। ऑलराइट, या तो हम कुछ और इट्स लाइक ब्लेसिंग्स लेते हैं या ब्लेसिंग्स देते हैं। ऑलराइट, सो इट्स ऑल अबाउट गिव एंड टेक। स्टॉक मार्केट में भी लेना देना है, लाइफ में भी लेना देना है, और हम हमेशा चाहते हैं कि हमें ज्यादा मिले और कम देना पड़े। जहां पे बात आती है पैसों की, वी आर इंडियंस, व्हेन इट कम्स टू मनी वी ऑलवेज वांट टू टेक मोर एंड गिव लेस। ऑलराइट, आई होप सारी मेरी इस बात से कॉन्कर करते हैं। कोई है जो कहता है कि नहीं नहीं मैं तो आई वांट टू गिव मनी, आई वांट टू गिव मोर मनी एंड टेक लेस मनी, ऐसा कोई है? राइट, ब्लेसिंग्स की बात आती है तो ब्लेसिंग जितनी मर्जी ले लो, हमें कोई ब्लेसिंग नहीं चाहिए, ब्लेसिंग चाहे जितनी मर्जी ले लो, बट जब पैसों की बात आती है वी वांट टू टेक मोर एंड गिव लेस। बट इन स्टॉक मार्केट वी डू कंप्लीटली द ऑपोजिट। व्हाट वी डू इज कि अगर स्टॉक 400 रुपए का हमने बाय करा है, 416, 4%, 5%, 1%, 2%, सबका अपना अपना पेशेंस लेवल होता है, उस पे हम निकल जाते हैं। सो वी टेक लेस। और अगर कोई स्टॉक 400 पे हमने बाय करा है, वो 300 रुपए तक भी आ जाता है, तब भी हम उसमें बैठे रहते हैं। आप में से कोई ऐसा है जो जिसने ये एक्सपीरियंस किया है, जो ये करते हैं स्टॉक मार्केट में, दैट दे गिव मोर एंड टेक लेस? एनीवन? राइट, सो हम 400 रुपए में घुसते हैं एंड वी आर लाइक के यार 300 रुपए, जब वो 380 पे आता है वी आर लाइक नो 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 इट विल गो अप, आई नो दिस इज लाइक फंडामेंटली दिस इज अ गुड स्टॉक, टेक्निकली इट्स अ गुड स्टॉक, दैट टीवी गाय इज आल्सो लाइक 380 पे इट्स अ बाय, व्हेन इट कम्स टू 350 इट्स लाइक नो 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 इट विल गो अप, और कितना नीचे जाएगा और कितना नीचे जाएगा। राइट, ऐसे करते करते स्टॉक 300 से 3 रुपए का भी आ जाता है, तब भी हम उसमें बैठे रहते हैं। और जबकि 400 का जब तक 410 होता है, मतलब इट्स लाइक जस्ट 10 रुपीज दे रहा होता है, हम उसमें निकल जाते हैं। कोई मुझे बता सकता है क्यों, ऐसा क्यों है? anyone who can tell me why are we not able to take more profits and why are we giving more losses? Anyone? We are uncertain. Okay, greed, we don't just hold, in fact we average down also. Yes, हम और नीचे खरीदने लग जाते हैं, जो कि महापाप है। फियर एंड ग्रीड, नो प्रॉपर स्टॉप लॉस, साइकोलॉजी फैक्टर। सर जब नीचे आता है वी मेक इट लॉन्ग टर्म, यस हम इन्वेस्टर बन जाते हैं। सो इट्स लाइक कि जब हम अगर तो प्रॉफिट में चल रहे हैं तो हम ट्रेडर है, बट अगर नीचे आ गया तो हम इन्वेस्टर है, तो इसे हम बोलते हैं फोर्स्ड इन्वेस्टर्स, वी आर फोर्स्ड इन्वेस्टर्स। नाउ ऑल दीज आंसर्स, फियर, ग्रीड, स्टॉप लॉस, फॉल्स होप, ये सारी चीजें सोच के बताओ ये क्यों आती है? वाई इज इट लैक ऑफ पेशेंस? वाई इज इट कि ये सारी चीजें आपके दिमाग में आती है? जब आपने पहली बार कार चलाना सीखा था तो आपको ये चीज आ रही थी, आपके सब मन में डर था जब बाइसाइकिल चला रहे थे या कार चला रहे थे, द सेम फीलिंग्स वर देयर, द फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी, फियर, ग्रीड, होप, एवरीथिंग। बट अब हम कंफर्टेबल है, व्हाई? बिकॉज वी लर्नड इट and then we practiced it. All right, now what we need to do is that we need to learn how to get into the right stock at the right time. उसकी जो सबसे अच्छी बात यह है कि आज
विद इन नेक्स्ट 90 मिनट्स आप ये चीज सीखने वाले हो एब्सोल्युटली फ्री, राइट। उसके बाद जो दूसरी चीज आती है वो होती है प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आई ऑलवेज से दैट पेशेंस इज डेवलप्ड, राइट। पेशेंस कैनॉट बी बॉट, पेशेंस कैनॉट बी लर्नड, राइट। पेशेंस हैज टू बी डेवलप्ड, और वो डेवलपमेंट तभी होती है जब आपने प्रैक्टिस बहुत ही कम शेयर्स के साथ करी है। जब प्रैक्टिस ही आप थोड़े थोड़े शेयर्स के साथ करोगे और धीरे धीरे अपने शेयर्स बढ़ाते रहोगे, तब जाके आपको स्टॉक मार्केट का सही मायना समझ में आएगा। इट्स जस्ट लाइक, जैसे कि सचिन तेंदुलकर का मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं कि सचिन तेंदुलकर ने 4 साल 5 साल नेट्स में बहुत जमकर प्रैक्टिस करी थी, तभी वो पाकिस्तान में जाके वसीम अकरम जी को फेस कर पाए, राइट। सो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस हमें ज्यादा क्वांटिटी के साथ नहीं करनी होती, कम क्वांटिटी के साथ करनी होती है ऑलवेज। और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। कई लोग होते हैं जो कल से ही इसी चीज पे कल ही काम करने लग जाएंगे और हाई क्वांटिटी लेके अपना लॉस पूरा करने की कोशिश करेंगे, या मर्सिडीज बेंज खरीदने की कोशिश करेंगे, थिंग्स लाइक दैट। बट उनका जो इमोशनल और पेशेंस लेवल है वो उनके क्वांटिटी के साथ मैच नहीं करता, वो इन प्रैक्टिस के साथ मैच नहीं करता, जिसकी वजह से फियर, होप, ग्रीड आ जाएगा। आपको मैं आसान भाषा में अगर समझाऊं, सो इट्स लाइक कि आपने अभी गाड़ी चलानी सीखी नहीं है और 200 की स्पीड पे हाईवे पे चलाने लग गए, तो आपको डर भी लगेगा, और बाई चांस अगर पहले ही दिन गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, आप जिंदगी भर कॉन्फिडेंटली गाड़ी नहीं चला पाओगे। इसलिए हम गाड़ी धीरे धीरे स्लो स्पीड पे सीखते हैं, खाली सड़कों पे सीखते हैं, उसके बाद हम उसको तेज करते हैं, है कि नहीं। सो गाइज, आई ऑलवेज से दैट द लर्निंग अबाउट वेयर टू एंटर, हाउ टू एंटर इज वन थिंग, राइट। वो सिर्फ 25% है, बाकी 75% है कि आप अपना दिमाग इस चीज में कैसे लगाते हो। आप जो एक बंदा है उसका दिमाग कुछ और करेगा, दूसरा बंदा उसका दिमाग कुछ और करेगा। With the same learning, it's not necessary that all will make profit. Everything, every person is, different. जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी आती है मार्केट में, और अनसर्टेनिटी मार्केट में आने की वजह से ही जो सर्टेन लोग होते हैं, जो अपने आप को पहचानते हैं, वो प्रॉफिट बना सकते हैं। और जो लोग अपने आप को नहीं पहचानते और सिर्फ स्ट्रैटेजीज पे या एनालिसिस पे या टीवी पे या फंडामेंटल पे या टेक्निकल पे काम करते हैं और अपने आप को नहीं जानते, वो हमेशा लॉस करते हैं। जिसको ये बात समझ में आया, जोर से लिखो जय माता दी और आगे बढ़े, आगे चढ़े। इनफ ऑफ ज्ञानबाजी, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज द ट्रूथ ऑफ स्टॉक मार्केट गाइज। We need to know ourselves before we know which stock to buy and which stock to sell. Okay, all right. So now let's get to the risk management. सबसे पहली चीज कि हमें जो फियर है, होप है, जो मैंने अभी आप सबने बोला अनसर्टेनिटी है, इसको दूर करने का उसको दूर करने का सबसे बड़ा तरीका क्या है? नील जी, आई एम कमिंग टू दैट, आई एम ट्राइंग टू कम टू दैट, नोइंग योरसेल्फ, ऑलराइट। The first thing which we need to understand is the risk. हमेशा कि अगर मैंने ये एक्शन किया तो इसका परिणाम क्या हो सकता है। अच्छा मुझे नहीं चाहिए, बुरा मुझे बता दो पहले ही, राइट। आप लाइफ में कुछ भी करते हो एंड यू हैव टू टेक अ डिसीजन, यू ऑलवेज एनालाइज द रिस्क फर्स्ट, बट नॉट इन स्टॉक मार्केट। अभी लेट्स से कि पीछे गंगा मैया बह रही है, राइट, पूरे फ्लो में गंगा मैया बह रही है, मॉनसून सीजन चल रहा है, बहुत मस्त गंगा मैया बह रही है उत्तराखंड हरिद्वार में, राइट, एंड यू गो एंड जंप इन गंगा मैया विदाउट द लाइफ जैकेट, राइट। अनसर्टेनिटी भी आएगा, रिस्क भी आएगा, एंड यू आर गैम्बलिंग विद योर लाइफ। बट अगर आपको स्विमिंग आती है, आपको पता है कि कौन से एरिया में जंप करना है और कौन सी लाइफ जैकेट पहन के करना है, और 10 लोग अगर खड़े हैं, तो दैट्स नॉट गैम्बलिंग, दैट्स कैलकुलेटिव रिस्क टेकिंग, ऑलराइट, टू गेट अ रिवॉर्ड, ऑलराइट। So it's all about analyzing the risk first before you take any decision in stock markets. आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये गलत हो गया तो मेरे को कितना नुकसान होगा। Am I clear on this? Type in yes, no or maybe. All right. So it's like if we want to get into stock markets, we always have to give जो हमारा गिविंग पीरियड होता है, जिसे हम बोलते हैं
देना पीरियड, क्या बोलते हैं, देना पीरियड। हमने जो पैसा देना है स्टॉक मार्केट को, ये हमेशा बहुत छोटा होना चाहिए, और जो हमारा लेना पीरियड होता है, द टेकिंग पीरियड, दैट शुड बी ऑलवेज मच हायर देन आवर देना पीरियड। ऑलराइट, अगर मैं आपको मैथ्स की टर्म में बताऊं, so my लेना पीरियड शुड बी एटलीस्ट 3 times ऑफ माई देना पीरियड। ऑलराइट, तो अगर मैं 100 रुपया दे रहा हूं, तो मेरे को कम से कम 300 रुपया लेना चाहिए। ऑलराइट, या फिर अगर मैं दूसरी भाषा में बात करूं कि अगर मुझे 300 रुपए देने हैं, तो मेरे को प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि अगर मेरे को 300 रुपए लेने हैं, तो मेरे को प्रिपेयर होना चाहिए कि 100 रुपए मेरे जा भी सकते हैं। ऑलराइट, let's get to maths about this, all right, which is in your hands। जैसे कि अभी मैं आपको हमेशा बताता हूं, इट्स लाइक के आपके हाथ में क्या है। कल अगर आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट खराब आया और स्टॉक भागने लग गया, आप कुछ नहीं कर सकते। रिलायंस का रिजल्ट आज अच्छा आया, कल गिरने लग गया, आप कुछ नहीं कर सकते। निफ्टी कल एकदम से गैप अप ओपनिंग हो गई, आप कुछ नहीं कर सकते। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट what is gonna happen, you cannot control the stock market। आप स्टॉक मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको अपने आप को कंट्रोल करना है, ताकि स्टॉक मार्केट आपको कंट्रोल ना करे। वाह, क्या बात बोली है। ऑलराइट, सो इट इज लाइक कि आपके हाथ में क्या होता है, दैट इज द फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। और आपके हाथ में स्टॉक मार्केट में, जो कि इतनी बड़ी है, इट्स लाइक सो मेनी ऑप्शंस, so many futures, so many equity shares, Dhaba 1 stocks, Dhaba 2 stocks, CNBC TV, इतने इकोनॉमिक टाइम्स, इतना कुछ है स्टॉक मार्केट में। बट आपको सिर्फ 3 चीजों पे फोकस करना है। ऑल यू नीड टू डू इज फोकस ऑन दीज 3 थिंग्स। व्हाट आर दीज 3 थिंग्स? पहली चीज, एंट्री प्राइस। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे को किस भाव पे घुसना है, ये आज हम सीखेंगे। सेकेंड थिंग, कि अगर ये बाई चांस गलत हो गया, अगर मेरी जो टेक्निक है जिससे मैं इसमें पैसा लगा रहा हूं, ये गलत हो गया, बीट फंडामेंटल, टेक्निकल, टीवी पे कोई बोल रहा है ऑप्शन है, कोई भी चीज, या फिर जो आज हम सीखेंगे, अगर ये गलत हो गया, तो वो कौन सा प्राइस है जिसपे मेरे को निकल जाना है। राइट, कि अगर नीचे आ गया, मेरे को अपना देना पीरियड छोटा रखना है, तो ये कौन सा प्राइस है जहां पे मुझे निकल जाना है। एंड द थर्ड थिंग इज टारगेट, कि अगर मैं सही हुआ तो मेरे को कितने पैसे बुक करने हैं। ऑल दीज 3 थिंग्स आर समथिंग जो आपको पता होना चाहिए, और यही सिर्फ 3 चीजें हैं भाइयों और बहनों जो आपके हाथ में है, बाकी सब इज आउट ऑफ योर कंट्रोल। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू हैव टू फोकस ऑन योर एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस एंड टारगेट बिफोर यू एंटर इनटू एनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। नाउ सपोज लेट्स से कि मेरा एंट्री प्राइस 100 का है, मेरा स्टॉप लॉस 90 का है। ऑलराइट, सो इट्स अबाउट ट्रेडिंग। आज हम इंट्राडे और छोटी ट्रेडिंग कर रहे हैं। सो लेट्स से कि मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 98 का है, 2% का स्टॉप लॉस लिया, और जो टारगेट लगा रहा हूं, मैंने बोला कम से कम 3 टाइम्स होना चाहिए। सो लेट्स से कि 106 रुपीज का मैंने टारगेट लगाया। ये चीज आपके हाथ में होती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि कल स्टॉक मार्केट क्या करेगी। अगर आप 100 रुपए में घुसते हो और आप अपने आप को बोलते हो कि भाई देख, या तो मैं 106 पे निकलूंगा या मैं 98 पे निकलूंगा, इसके बीच में मैं मार्केट को देखूंगा भी नहीं, रीजन चाहे जो भी हो, ये चीज मेरे हाथ में है। सो इफ आई बॉट इट एट 100, आई कैन पुट पंच इन ऑर्डर्स इन माय कंप्यूटर सिस्टम कि भाई 98 पे आया तो लॉस बुक कर लियो, 106 में आया तो प्रॉफिट बुक कर लियो। अब रिजल्ट चाहे अच्छा आए चाहे गंदा आए, इसके फंडामेंटल चाहे अच्छे हैं चाहे गंदे हैं, जो भी चीज है, अगर इन दोनों में से जो भी पहले लग जाता है, या तो 98 आ जाता है या 106 आ जाता है, आई विल गेट आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रेड। ये चीज आपके हाथ में है। यस और नो? आपको ये चीज समझ में आई? टाइप इन जय माता दी कि आपके हाथ में क्या क्या है। यू डोंट हैव टू फोकस। हम करते क्या है, हम 100 पे कोई ना कोई शेयर ले लेते हैं, और फिर उसके बाद मनी कंट्रोल पे, टीवी पे एक दूसरे से पूछते रहते हैं कि तेरे को क्या लग रहा है, ये क्या करेगा, तेरे को क्या लग रहा है, ये क्या होगा। भाई आपके हाथ में ही नहीं है, जिससे आप पूछ रहे हो उसके हाथ में नहीं है। फिर चाहे वो फंडामेंटल एनालिसिस हो या टेक्निकल एनालिसिस हो या ह्यूमन बीइंग हो, कोई भी हो, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। इट्स ऑल अबाउट बल्क में बाइंग होती है या सेलिंग होती है, एफआईआई को खरीदते हैं नहीं खरीदते, वो कोई भी हाथ में नहीं है। तो आपको ये सोचना चाहिए
कि अगर आपने कोई स्टॉक 100 पे ले लिया तो अगर 106 लग गया, व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट मूव? अगर ये 98 आ गया, व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट मूव? आपका फोकस इस पे होना चाहिए रादर देन वो स्टॉक के बारे में सोचना और उसमें न्यूज खोलना और ये सारी चीजें देखना कि ये क्या करेगा। ऑलराइट, सो सबकी वॉइस, इफ वॉइस इज क्रैकिंग आई कांट हेल्प इट, इट्स अ टेक्निकल इशू, मेरे हाथ में नहीं है पंकज जी। अगर ज्यादा वॉइस क्रैक कर रही है तो एक बार आप निकल के फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, ओके, चलो लेट्स गेट बैक। ऑलराइट, सो 100 पे लिया, 98 का स्टॉप लॉस, 106 का टारगेट, माय जो रिवॉर्ड है, अगर मैं ठीक होता हूं तो मुझे कितना पैसा बनेगा पर शेयर? मुझे कितना पैसा बनेगा पर शेयर अगर मैं ठीक होता हूं? आई वांट एवरीवन टू टाइप इन, इफ आई एम बाइंग एट 100 और अगर मैं ठीक हो गया तो और मैं उस पर निकल गया, मेरे को कितना पैसा मिलेगा? दैट इज लाइक 6 रुपीज। और अगर मैं गलत हो गया तो मेरा कितना पैसा जा सकता है? दैट इज लाइक 2 रुपीज। तो मेरा जो रिस्क टू रिवॉर्ड टू रिस्क है, रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो, ओके, इसे हम आर मल्टीपल भी बोलते हैं। रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो कितने का होगा? कोई बता सकता है? दैट इज 3:1, कि आने को 3 रुपए, जाने को 1 रुपए, है कि नहीं? सबको समझ में आया? दैट इफ आई डिवाइड माई रिवॉर्ड बाय रिस्क आई विल गेट द रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो। ऑलराइट, so this is the first thing which we need to understand. All right, chalo let's go to this sheet. Okay, आपको ये एक्सेल शीट दिख रही है, right? So let's say that I entered a stock at 100 rupees and my target was 106 and my stop loss was 98. अगर मेरा स्टॉप लॉस 98 का है तो मेरा रिवॉर्ड कितने का है? 6 पॉइंट का। मेरा रिस्क कितने का है? 2 पॉइंट का। तो मेरा जो रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो है वो कितनी है? 3:1। ऑलराइट, अब इसमें अगर मेरा रिजल्ट, अगर मैं ऐसे 10 ट्रेड करता हूं विद द सेम रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो, ऑलराइट, और उसमें से मेरा पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, फोर्थ राइट, फिफ्थ राइट, सिक्स्थ राइट, सेवंथ रॉन्ग, 8 रॉन्ग, 9th रॉन्ग, 10th रॉन्ग, कि मेरी किस्मत ऐसी खराब है कि 10 में से सिर्फ 3 ठीक हुए, आई एम स्टिल मेकिंग मनी। So even if my accuracy is 30%, that I take 10 trades or 10 investments, जिसमें से मेरा जो reward to risk है वो 3 है, जो कि आपके हाथ में है, अगर ऐसा होता है you will still make money। आप सबको ये चीज समझ में आई? टाइप इन जय माता दी ताकि आगे बढ़े। So we need to analyze, जो हमने सबसे पहले अपने आप को पहचानना होता है, उसमें हमने ये पहचानना होता है कि जो टेक्निक हम यूज कर रहे हैं उसका रिवॉर्ड टू रिस्क कितना है और उसकी एक्यूरेसी कितनी है, उसके हिसाब से हम अपना रिस्क डिसाइड करेंगे। ऑलराइट, नाउ इफ आई गिव यू अ टेक्निक जिसमें मैं अपना स्टॉप लॉस को थोड़ा छोटा कर सकता हूं, इट्स लाइक कि मेरा 100 पे ले रहा हूं, 106 का टारगेट है, बट इंस्टेड ऑफ 98 अगर मैं इसको 99 कर दूं, मैं अपना स्टॉप लॉस को छोटा कर दूं, तो मेरा जो रिवॉर्ड टू रिस्क है वो 6:1 हो जाएगा, और जहां पे मुझे 4 रुपए बन रहे थे पर शेयर, वहां पे मुझे 11 रुपीज बनने लग जाएंगे, लगभग 3 गुना ज्यादा। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट, दैट योर देना पीरियड 100 पे एंट्री है, स्टॉप लॉस कितने पे? 99, देना कितने का? 1 रुपए का। इसको आप जितना बढ़ाते रहोगे उतना ही रिवॉर्ड टू रिस्क और आपके चांसेस पैसा बनने का कम होगा। आप इसको जितना कम करोगे उतने चांसेस बढ़ते रहेंगे। क्लियर एवरीवन? यस, नो, मे बी? हम क्या करते हैं, हम 100 पे लेते हैं, हमारा टारगेट होता है 110 का, और मेरा जो स्टॉप लॉस होता है वो होता है कि मैं जब तक 0 नहीं हो जाता तब तक नहीं लूंगा। ऑलराइट, तो मेरा रिवॉर्ड कितना है? 10 का। मेरा रिस्क कितना है? लगभग 99 या 100 का। जिंदगी भर पाल के बैठते हैं। ऑलराइट, इसमें से अगर आपके सारे भी ठीक हो जाते हैं, राइट, और एक गलत हो जाता है, यू आर स्टिल लूजिंग मनी। आप सारी जिंदगी सारा कुछ ठीक करते रहे और एक अगर स्टॉक यस बैंक बन गया, एक अगर स्टॉक किंगफिशर बन गया, आपका हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। पंजाबी में कहते हैं फाफे लग जाएंगे। क्लियर एवरीवन? तो हमने अपना देना पीरियड और लेना पीरियड सोच समझ के करना है। हम सारी, मतलब कि द एंड ऑफ दिस कंक्लूजन, आई मीन टू कंक्लूड दिस डिस्कशन, ऑल आई एम सेइंग इज कि स्टॉप लॉस बहुत जरूरी होता है। आपका जो देना पीरियड है वो बहुत छोटा होना चाहिए। क्लियर एवरीवन?
All right, चलो let's move ahead. So this was about देना पीरियड एंड लेना पीरियड जो कि हमारे हाथ में होता है. ऑलराइट, सो इफ इट्स लाइक लेट्स डू अ क्विक एक्सरसाइज. एक फटाफट एक एक्सरसाइज करते हैं. आप मुझे फटाफट बताओ कि मेरा स्टॉप लॉस पॉइंट्स कितना, मेरा रिस्क पर शेयर कितना है और मेरा रिवॉर्ड पर शेयर कितना है, उसका रिवॉर्ड टू रिस्क एक्यूरेसी, रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो और एक्यूरेसी कितनी है. ऑलराइट, सो इफ आई एंटर एट 100, ऑलराइट, एंड माय स्टॉप लॉस इज 98, okay, and my target is 112. Let's say I'm taking 12% ka target. What is my reward to risk ratio? Everyone, I want everyone, especially the newcomers, to type in what is my reward to risk ratio. That is 6:1. Very good. Now what if I do this, that instead of 98 I decrease my dena period to 99. Now what will be my reward to risk ratio? My dena period is 99. That is 12:1. That means कि अगर 10 में से मेरा एक भी ठीक होता है और 9 गलत हो जाते हैं, I am still making money. Yes, I am gonna teach you exactly this today. All right, 12%, 13% रिवॉर्ड आप चाहे जितना मर्जी लो. अभी हम आज फोकस करेंगे रिस्क पे. रिवॉर्ड लेना डिपेंड्स अपॉन कि आप स्टॉक मार्केट में करने क्या आए हो. सेकेंडरी इनकम बनाने आए हो, इन्वेस्टिंग करने आए हो, या डेली का प्रॉफिट बनाने आए हो, या वीकली प्रॉफिट बनाने आए हो. उस पर डिपेंड करता है कि ये जो नंबर है ये क्या होगा. ऑलराइट, ये भी आपको पहले से पता होना चाहिए, आपको अपने आप से पूछना चाहिए. ऑलराइट, जो ये चीज है ये सबके लिए वैलिड है. ऑलराइट, आपका देना पीरियड, चाहे आप इन्वेस्टर हो, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडर हो, या फिर आप स्विंग ट्रेडर हो या पोजिशनल ट्रेडर हो, उन सब के लिए ये चीज वैलिड होती है. जो रिवॉर्ड, जो एग्जिट होता है, वो डिपेंड करता है आपकी साइकोलॉजी पे, और वो डिपेंड करता है कि आप स्टॉक मार्केट में करने क्या आए हो. क्लियर एवरीवन? ऑलराइट, so let's get you the first strategy. That's a very good strategy for intraday and midweek. मैं ज्यादा इसको खींचूंगा नहीं, सीधा सीधा बात करने की कोशिश करते हैं. ऑलराइट, थोड़ा मैं आपको समझा देता हूं so that it's easy for you. ऑलराइट, करना क्या है? अगर अभी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, रेड जोन एंड ग्रीन जोन, रिमेंबर एवरीवन, रेड जोन और ग्रीन जोन. ओके, सो सपोज ये रेड जोन है. ऑलराइट, स्टॉक नीचे आया, स्टॉक नीचे आके लेट्स से इट क्लोज्ड एट 400, 400 का इसने नया लो बना दिया. ऑलराइट, ये 400 रुपए पे बंद हुआ. मुझे एक बात बताओ, इसका 2% कितना होगा? 2% ऊपर कितना होगा? What will be 2% above 400? I want you to give me the complete number, guys. जो सिर्फ 8 लिख रहे हैं वो नए लोग हैं, राइट? पुराने लोग पूरा लिख रहे हैं. वेरी गुड. आई नीड यू, जब भी मैं 2% पूछूं तो आपने ऐड करके बताना है टोटल. ओके, सो माय 2% इज 408. ऑलराइट, तो यहां पे मैंने 408 पे एक डॉट बना दिया. ऑलराइट, कहने का मतलब ये है कि जब तक ये स्ट्रैटेजी सेज कि जब तक ये जो नया लो बना है इससे 2% ऊपर नहीं चले जाता, आपने इसमें बाइंग करने की नहीं सोचनी है. समझ में आया कि स्ट्रैटेजी इज बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन, कि जब भी वो नया लो बनाएगा अगर इससे 2% ऊपर चला जाएगा तो ही हम बाय करने की सोचेंगे, तभी हम बोलेंगे कि हमारा ग्रीन जोन स्टार्ट हो गया है. अदरवाइज इट विल बी अ रेड जोन. ऑलराइट, लेट्स से कि यहां से ये अगले दिन ऊपर गया, 402 पे बंद हुआ, फिर नीचे आया 401 पे, फिर ऊपर गया 403 पे, लेट्स से 402 रुपए, 406 रुपए. ऑलराइट, और जो मेरा बाइंग लेवल था वो कितना था? दैट वाज 408. राइट, अब ये 408 तक नहीं गया, 406 से वापस नीचे आके इसने एक नया लो बना दिया. ओके, एंड दिस लो इज लेट्स से 390 रुपीज. अब क्योंकि ये नया लो बन गया है, ये 400 से नीचे आ गया है, तो अब 390 का 2% कितना होगा गाइस? व्हाट विल बी 2% ऑफ 390? 390 का 2%, हाउ मच विल दैट बी? लगभग, हाँ लगभग ही निकालने का. ऑलराइट, सो दैट इज 398. तो अब मेरा जो बाइंग प्राइस है वो भी नीचे आके 398 का हो गया है.
मतलब कि क्योंकि इसने नया लो बना दिया है, जब तक नए लो से ये 2% ऊपर नहीं जाएगा मैं बाय नहीं करूंगा। तो लेट्स से ये और ऊपर गया फिर नीचे आया, ऑलराइट, और ऐसे नीचे नीचे जाते जाते जिस दिन ये 2% क्रॉस कर जाता है, ऑलराइट, वहां से आपका ग्रीन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। क्लियर एवरीवन? सबको ये चीज समझ में आई? राइट, अभी हम इसको चार्ट्स में देखेंगे तो थोड़ा और आइडिया हो जाएगा। ग्रीन पीरियड, अगर मैं इसको वर्ड्स में लिखूं, माय ग्रीन पीरियड, या फिर हम इसे ग्रीन मैग्नेट बोल सकते हैं। ग्रीन पीरियड स्टार्ट्स व्हेन द स्टॉक राइजेस अबव 2% ऑफ द लेटेस्ट लो। मतलब कि पिछले जो भी जहां से भी नीचे गिरा हुआ है, लेटेस्ट लोएस्ट क्लोज, ऑलराइट, कहने का मतलब कि जहां पे भी ये बंद हुआ था, जो भी सबसे नीचे बंद हुआ था, वहां से जैसे ही 2% ऊपर जाता है वहां से मेरा ग्रीन पीरियड शुरू हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? टाइप इन यस, नो, मे बी। अभी मैं चार्ट में दिखाता हूं, आपको सब समझ में आ जाएगा। ओके, विनीत जी इज लाइक नो, ऑलराइट, ऑलराइट, चलो, यस, ओके। सो इट्स लाइक अपने अभी ये ग्राफिकल करा, चार्ट में जाते हैं, ऑलराइट। तो हम कहां गए थे? हम गए थे tradingview.com, राइट, दैट वाज tradingview.com। इसमें एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है, आप यहां पे एफएक्स का बटन देख पा रहे हैं? आई विल, विनीत जी अभी देखते हैं। तो दिस इज एफएक्स का बटन, यस, राइट। यहां पे मैं एफएक्स के बटन पे जाऊंगा एंड आई विल राइट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग परसेंट, ओके। तो यहां पे ये एक भाई साहब है रशिया के, किवान ऑब्लिचिक, राइट, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस हिज नेम करेक्टली, बट इन्होंने एक पब्लिक लाइब्रेरी में बहुत अच्छा इंडिकेटर छोड़ा हुआ है, दैट इज ट्रेडिंग परसेंटेज स्टॉप, ऑलराइट। सो वी विल क्लिक ऑन टू दिस ट्रेडिंग परसेंटेज स्टॉप, ऑलराइट। और यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे एक लाइन वाला इंडिकेटर लग जाएगा। क्लियर एवरीवन? अभी मेरे को यहां पे इसके सेटिंग्स में जाना है, आई नीड टू चेंज द सेटिंग। तो मैं जब अपना कर्सर को यहां पे रखूंगा, बीच में सेटिंग्स का बटन आता है, ठीक है। सेटिंग्स के बटन में जो मैं स्टॉप परसेंटेज जो है इसको मैं कर दूंगा 2, क्या रखूंगा? 2। क्लियर एवरीवन? ऑलराइट, अब इसको मैं जैसे ही ओके करता हूं एंड आई गो ऑन टू लेट्स से 5 मिनट या 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं, ऑलराइट। अब आपको देख रहे हो कि ये एसीसी का हमने चार्ट लगाया था, एसीसी के चार्ट में यहां से ये जो रेड लाइन आ रही है ऊपर, राइट, ये रेड लाइन है कि ये सेल जोन बना हुआ है। जब तक ये रेड लाइन ग्रीन नहीं हो जाती, जब तक ये इसको क्रॉस नहीं कर जाता, तब तक हमारा बाय जोन नहीं आएगा। क्लियर? यहां पे ये 2% ऊपर चला गया, सो दिस इज द डिफरेंस ऑफ 2%। यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है ये 2% का है। ये जो लेटेस्ट क्लोज बना था, यहां से जो ये डिफरेंस है ये 2% का है। क्लियर एवरीवन? लेट मी गो जूम इन, थोड़ा ज्यादा अच्छे से दिखेगा, ऑलराइट। तो हमने क्या करना है कि जब ये लाइन अपना जो भी स्टॉक है, ओके, जो भी स्टॉक है वो जब तक 2% के ऊपर नहीं क्लोज हो जाता तब तक हमने उसमें बाय नहीं करना। तो दिस इज द सेल जोन, यहाँ पे हमने बेच के चलना है अगर मेरे इंट्राडे ट्रेडर हूं, और यहाँ पे मुझे बाय करके चलना है। क्लियर एवरीवन? सबको समझ में आया? हाउ डिड आई एड दिस लाइन? आई विल टॉक टू, आई विल ये वाली चीज मैं एक बार रिपीट कर दूंगा, डोंट वरी कि ये कैसे लगाना है, इसका रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट ऑल्सो, राइट। सारी चीज आपको सब होगा। मैं आपको वापस क्या बता रहा हूं, लेट्स गो हियर। स्टॉक नीचे गिर रहा है, गिरने दो, ठीक है, जब तक ये 2% ऊपर नहीं चले जाता, 2% ऊपर नहीं चला जाता। सत श्री अकाल तमिल जी, सत श्री अकाल सेल्वन जी, ऑलराइट। जब तक ये 2% ऊपर नहीं चले जाता तब तक ये जो अपना ट्रेलिंग है ये नीचे चलता रहेगा। जैसे ये 2% ऊपर जाएगा वो लाइन क्रॉस हो जाएगी, ऑलराइट, और मेरा ग्रीन जोन स्टार्ट हो जाएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, स्टॉक नीचे गया, यहां से ऐसे जो भी ऊपर करता रहता है, फिर नीचे आता है, फिर बीच में घूमता रहता है, फिर नीचे आता है, फिर घूमता रहता है, राइट, और यहां से
जब वो वापस ऊपर जाता है और वो 2% क्रॉस कर जाता है तो मेरा ग्रीन जोन स्टार्ट हो जाता है। तो यहां से मेरा ग्रीन जोन स्टार्ट हो गया। ऑलराइट, तो मेरे को अगर बाय करके चलना है मैं इस जोन में बाय करूंगा, मेरे को अगर सेल करके शॉर्ट करके चलना है तो मैं इस जोन में शॉर्ट करूंगा। क्लियर एवरीवन? टाइप इन यस, नो, मे बी। अभी हम एग्जाम्पल करेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी। क्लियर क्लियर क्लियर, प्लीज क्लियर क्लियर लिख दो। मैं 2 बार ही समझा चुका हूं। मैंने आपको बोला था ये एडवांस क्लास है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें वो होगा, तो जो जो चार्ट पहले से करते आते हैं उनके लिए बेटर रहेगा। ऑलराइट, बट देन यू विल हैव द रिकॉर्डिंग, you will have my email number, you will have my WhatsApp number, no, not WhatsApp number, email number, email address, and you can approach me anytime. All right, चलो let's get back and do some practice. Let's take up some stocks. अभी क्या है कि आप सारे stocks list देने लग जाते हो, right? But will this 2% be for every stock? Yes, दीपक अरोड़ा जी, 2% will be for every stock. अभी मैंने आपको पूरी बात बताई नहीं है, अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि रेड जोन कौन सा है और ग्रीन जोन कौन सा है, बाय किस में करके चलना है और सेल किस में करके चलना है। ऑलराइट, कितरो फड़ लिया इंडिकेटर, खुद दिमाग, रिसर्च। ओके, लेट्स टॉक अबाउट, ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी, लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी। ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट निफ्टी, क्योंकि निफ्टी में ज्यादातर ऑप्शंस भी ट्रेड कर सकते हो, निफ्टी इज अ बेस्ट इंट्राडे टूल, निफ्टी इज अ बेस्ट इंट्राडे जिसमें आप इंट्राडे कर सकते हो। ऑलराइट, तो दिस इज दैट जोन। यहां पे जब ये इधर इसने 2% ऊपर गया, यहां से यहां तक, जब तक ये नीचे नहीं आया था, ये आपका बाय जोन था, इसमें आपने बाय करके चलना था। ओके, और यहां से इधर इसने 2% ऊपर गया, और आज आज इट्स लाइक आज शाम अराउंड 2 o'clock इट ब्रोक द 2% वाली चीज। मतलब कि निफ्टी में अभी बाइंग नहीं करने का जब तक ये वापस ऊपर आ जाता, क्योंकि ये रिस्की है। सबको ये बाय जोन समझ में आया? यस, नो, मे बी एवरीवन? If I talk about, oh, I asked you to take up some stocks. All right, let's talk about HDFC. HDFC किसी ने लिखा था, this is HDFC. Okay, now this is the sell zone. अभी तक इसमें buy zone नहीं आया है, ये sell zone है, तो आपने इसमें short करके चलना है। और आज जो इसने लो बनाया that is 1804, जो कि आप देख रहे हो कि lowest close है, इससे नीचे अभी नहीं करा है। इसका 2%, 1804 का 2% कितना होगा? दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 1840, 1845। तो ये जो लाइन है ये 2% ऊपर की है 1840 की। एम आई क्लियर? व्हाट आई एम ट्राइंग टू सजेस्ट यू गाइज इज कि ये चीज जो है यहां पे 2% इज लाइक माय एंट्री, और जो भी उसका नीचे 2% के नीचे है दैट इज माय स्टॉप लॉस, और ये मेरा देना पीरियड है। क्लियर एवरीवन? इट्स लाइक कि आप जो भी रिस्क लोगे वो 2% से ज्यादा का होगा ही नहीं। क्लियर एवरीवन? यस, नो, मे बी? आई वॉन्ट एवरीवन टू टाइप इन, और जिसने नो लिखा वो भी लिख दो नो, नहीं समझ में आया, एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट नंबर्स। Okay, let's talk about numbers. This can be done in options also very well. Okay, all right, so let's talk about HDFC. Okay, HDFC ने हाई बनाया, so it was like 2% ऊपर। What will be my entry price? कोई मुझे बता सकता है राइट साइड देख के मेरा एंट्री प्राइस कितना होगा? What will be my entry price? That is 1857. All right, तो मैं यहां पे जाऊंगा, यहां पे मेरा जो एंट्री प्राइस है, अगर मैं 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो ले रहा हूं, मेरा एंट्री प्राइस है 1857। ऑलराइट, ऑन 1 लाख पोर्टफोलियो। ओके, वेयर वी गो। ऑलराइट, और इसका नीचे 2% विल बी व्हाट? हाउ मच? 2% इसका कितना है? दैट इज 1821। यस,
1821 will be 2% of this. Yes, no, maybe. 1857 का 2% नीचे का स्टॉप लॉस -38 करके दो ना गुरचरण जी. 1857 चो 38 कट के दो मैनू. हाउ मच विल दैट बी? तो इट्स लाइक कि मेरा एंट्री मेरे को डिफाइन हो गया, दैट इज 1857. माय स्टॉप लॉस विल बी 1820. ऑलराइट, so now where I have to go? Okay, so my stop loss is 1820. ऑलराइट, मेरा जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो कितने का? 1 लाख रुपया. मेरे पास 1 लाख रुपया था, मैंने लगा दिया. ऑलराइट, मेरा रिस्क कितना है? 2000. अब ये जो 2000 रुपए है, राइट, ये मैंने आपको पहले बताया था कि कल से मत ये रिस्क लेने लग जाना. कल 200 रुपए का रिस्क लेना. कम से कम 1 महीना आप 200 रुपए के रिस्क से चलना. आप इसकी पहले प्रैक्टिस करो. ज्यादा लालच मत करना. जितना लालच करोगे उतना डिले होता रहेगा सारी चीजें. ऑलराइट, हमने अभी गाड़ी चलानी सीखनी है, तो हम 200 रुपए का रिस्क लेंगे. मतलब कि अगर मेरे 37 शेयर्स आ रहे हैं, सॉरी, मेरे नंबर ऑफ शेयर्स आ रहे हैं 54, तो मैं 54 शेयर्स नहीं लूंगा, मैं 5 शेयर लूंगा, मैं 10 शेयर लूंगा. दैट्स इट. और मैं 1 महीना प्रैक्टिस करूंगा. जिस दिन आप एक्सपर्ट हो गए तो मेरी बला से आप 100 शेयर लो, कोई चक्कर नहीं है, जितना मर्जी रिस्क लो. राइट, बट ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, उससे भी आते खराब होती है. एम आई क्लियर ऑन दिस? ऑलराइट, ओके. सो नाउ हियर यू आर एंटरिंग, at this point you are entering, okay, which was approximately, okay, ये ACC लग गया, sorry, right. Okay, so this is Hindustan Unilever. 1857 पे आपने एंटर, हिंदुस्तान कह रहा हूँ, HDFC, हिंदुस्तान यूनिलीवर मेरे मन से निकल जाता है बार बार. ओके, तो इट्स लाइक 1857 पे आपने एंटर किया, और साथ साथ जैसे जैसे वो हाई बनाता रहेगा, आपका जो स्टॉप लॉस है वो भी ऊपर जाता रहेगा. और यहाँ पे आप देख रहे हैं, दिस इज जस्ट अ 5 मिनट चार्ट. तो इट्स लाइक आफ्टर 2 आवर्स जो आपका जो बाय प्राइस था वहां पे आपका स्टॉप लॉस आ गया है. इट्स लाइक कि धीरे धीरे ये स्टॉप लॉस ऊपर चला गया है. अब आपका नो लॉस नो प्रॉफिट पोजीशन पे है. हफ्ते में जहां पे भी ये नीचे जाएगा, राइट, जहां से भी ये नीचे जाएगा वहां पे आप निकल जाओगे. राइट, सो इट वाज एन इंट्राडे ट्रेड. 1857 पे आपने एंटर किया और आप 1874 पे निकल गए. सबको ये चीज समझ में आई? आई विल टेक क्वेश्चंस लेटर. एवरीवन, जिसको जो मैं अभी बता रहा हूं वो सबको समझ में आया? अभी मैंने पूरी बात बताई नहीं, अभी मैंने पूरी बात बताई नहीं. ओके, राइट, so this is one thing. all right, और लेट्स से अभी यहाँ पे there was no buying. अगर आपने शॉर्ट करके चलना है तो आप शॉर्ट कर सकते हो, बट शॉर्टिंग मैं नहीं बोलूंगा. सर, आई डिडंट अंडरस्टैंड हाउ यू डिसाइडेड. ओके ओके, यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, HDFC का लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? विवेक जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ. HDFC का इस चार्ट में लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? अगर मैं मार्क करूं, इज इट ए, इज इट बी और इज इट सी? लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? ए, बी और सी? दैट इज ए. वेरी नाइस. इसका क्लोजिंग कितने पे है? ये कितने पे क्लोज हुआ था? 1821. यस, राइट. 1821 का 2% विल बी 1857. ये रेड लाइन. ओके, जैसे जैसे ये रेड लाइन, तो इट्स लाइक यहां से लेके यहां तक, इफ यू आर लुकिंग टू बाय HDFC बैंक, यू आर वेटिंग, पेशेंटली वेटिंग कि भैया ये 857 के ऊपर जाएगा तब मैं बाय करूंगा. यहाँ पे 857 के ऊपर चला गया, आपने बाय कर लिया. अब 2% नीचे का स्टॉप लॉस है, दैट इज दिस ग्रीन लाइन. जैसे जैसे ये ऊपर जाता रहेगा आपका स्टॉप लॉस भी बढ़ता रहेगा, और जहां पे भी नीचे आया वहां पे आप निकल जाओगे. अगर सबको ये चीज समझ में आई, जोर से लिख दो जय माता दी. I want everyone to type in. I will take questions later. Okay, so this was one thing. All right, so if I talk about sir, in live trading, how do you know it is lowest point? Okay, ओके, विवेक जी, अभी लाइव ट्रेडिंग चल रही है, ठीक है. अभी आपको पता है कि लोएस्ट पॉइंट कौन सा है एबीसी में? विवेक जी, अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूं, व्हाट इज द लोएस्ट पॉइंट? दैट इज दिस पॉइंट, राइट. अभी लाइव ट्रेडिंग चल रही है.
अभी अगर इस पॉइंट के बेसिस पे मैंने डिसाइड करा हुआ है कि ये लेना है, राइट, अगर ये यहां से और नीचे गिरने लग जाएगा तो ये रेड लाइन और नीचे आ जाएगी, जैसे कि इन दिस पर्टिकुलर केस अभी लोएस्ट पॉइंट अकॉर्डिंग टू दिस, व्हाट इज द लोएस्ट पॉइंट? बी, यस। तो इट्स लाइक कि अगर एचडीएफसी बैंक मुझे लेना है तो मुझे इस लाइन पे लेना है, ऊपर लेना है 1908 पे, बट अगर लाइव ट्रेडिंग में और नीचे गिर गया, ये वाली लाइन भी नीचे आ जाएगी। नाउ माय बाय प्राइस विल चेंज, आई विल वेट फॉर इट टू क्रॉस अबव 1906। अब ये और नीचे गिरी जा रहा है, ये रेड लाइन जो मेरा बाय लाइन है ये भी नीचे आई जा रही है। क्लियर विवेक जी? yes, no, maybe, okay, very good, chalo, all right, so this was simply about कि हम 100 पे ले रहे हैं, हमारा टारगेट आप जो मर्जी लगा लो, कम से कम 3 टाइम्स होना चाहिए। तो 1857 का इस लाइक कि अगर आप 2% का रिस्क ले रहे हो तो 6% का आप टारगेट लगा सकते हो, इट कैन बी 106, ऑल राइट। स्टॉप लॉस आप ले रहे हो 98 का, यस, ये चीज आपको समझ में आती है सबको? यस, नो, मे बी। ये वाली हम वापस एक चीज में आपको, और जो अभी मैंने पूरी बात बताई नहीं थी, अब मैं थोड़ा और एडवांस जा रहा हूं, सबको क्लियर है? ओके, नाउ इंस्टेड ऑफ 98 अगर मैं अपना स्टॉप लॉस 99 कर लूं तो मजा आएगा कि नहीं? अगर मैं अपना स्टॉप लॉस पॉइंट छोटा कर लूं मजा आएगा कि नहीं? यस, नो, मे बी। मेरा रिवॉर्ड टू रिस्क कितना हो जाएगा? मेरा रिवॉर्ड टू रिस्क कितना हो जाएगा? ओके, नाउ इफ आई से कि मैं अपना स्टॉप लॉस पॉइंट्स को 99.50 कर देता हूं और छोटा कर देता हूं, तो मेरा रिवॉर्ड टू रिस्क कितना हो जाएगा? मजा आएगा कि नहीं? यस, नो, मे बी। राइट, मैं अपना देना पीरियड, ये मेरे हाथ में है, ये सारा कुछ मेरे हाथ में है, ये चीज किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है कि उसके एनालिसिस कैसे है, उसके फंडामेंटल कैसे है, उसके टेक्निकल कैसे हैं। That I will reach SL soon. Yes, Vivek ji, that is the risk. That's why this strategy comes in. That's why we need to learn momentum, volatility, trend identification. थोड़ी हमें एडवांस में चीजें सीखनी पड़ती है, राइट? बट चलो एक चीज करके देखते हैं। अभी मैंने देखा कि यहाँ पे मेरा ग्रीन पीरियड डिफाइंड है, राइट, इस पॉइंट पे। सो इफ आई जूम इन, यहां से मेरा ग्रीन पीरियड डिफाइन हो गया, यस, राइट। और मुझे एक बारी कोई मुझे फटाफट कैलकुलेट करके बता दो मेरे नंबर ऑफ शेयर्स कितने आए थे? दैट वाज 37 शेयर, 1857 पे ले रहा था एंड 1820 वाज माय स्टॉप लॉस। सुबोध जी बिल्कुल जल्दी हिट होगा स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस हिट होने दो, कोई चक्कर नहीं है, एक बारी देखो तो सही। अगर मैं 2% का रिस्क लेता हूं, 1857 पे एंट्री, 1820 स्टॉप लॉस, 37 शेयर, 54 शेयर मेरे पास आ रहे हैं, यस, 54 शेयर, ओके, एट अ रिस्क ऑफ 2000, ऑल राइट। नाउ इफ आई एक्चुअली वांट टू डू इंट्राडे ट्रेडिंग, व्हाट कैन आई इंट्रोड्यूस अ न्यू कॉन्सेप्ट विच इज मूविंग एवरेज। आप में से किसी को मूविंग एवरेज के बारे में पता है? तो दिस इज मूविंग एवरेज, 20 पीरियड मूविंग एवरेज। व्हाट इज दिस? ये मैं आपको मेरे सेशन जो स्माइफ है उसमें मैं आपको बताऊंगा, ऑल राइट। बट अभी मैं आपको बाद में भी बता देता हूँ, ओके। जस्ट रिमाइंड मी कि आप मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट मेरे से पूछना चाहते हो तो मैं आपको बता दूंगा बाय द एंड ऑफ दिस सेशन। अभी आई एम नॉट डिस्कसिंग दिस। सिंपल मूविंग एवरेज, 20 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज ऑन द 5 मिनट चार्ट, ओके। अब यहाँ पे क्या करना है, अपन को सिंपल वेट करना है कि ये मूविंग एवरेज के नीचे जाके जब वापस ऊपर आएगा हम बाय करेंगे, ओके। तो इट इज लाइक कि मूविंग एवरेज के नीचे कब आया? यहां पे नीचे आया, यस, नो, मे बी। यहां पे नीचे आया, यस, राइट, और इसके बाद यहां पे वापस ऊपर चला गया। तो दिस वाज द रेड कैंडल, ये मूविंग एवरेज के नीचे आके वापस ऊपर चला गया। जैसे ये ऊपर गया, आई विल एंटर, तो माय एंट्री प्राइस विल बी दिस लाइन, ठीक है। मैं इसको थोड़ा डार्क ग्रीन कर देता हूं, ज्यादा कंफ्यूज मत हो जाना उससे, बहुत सारे मैं डायग्राम्स बना रहा हूं। तो ये जो रेड, ये जो ग्रीन लाइन है, ये मेरा एंट्री लाइन हो गया देना पीरियड का। और मेरा स्टॉप लॉस क्या रखेंगे? स्विंग लो, जहां तक नीचे गया था, ये मेरा स्विंग लो स्टॉप लॉस है, ऑलराइट।
नाउ मैंने कितने नंबर ऑफ शेयर्स लेने थे? व्हाट वाज माय नंबर ऑफ शेयर्स एवरीवन? मैंने 2% के हिसाब से कितने नंबर ऑफ शेयर्स लिए थे? दैट वाज 54. दैट वाज नॉट 37, 54. दैट वाज 54. 37 इज द रिस्क पर शेयर. 54 शेयर्स आएंगे. ओके राइट. तो अब अगर मैं 54 शेयर्स लेता हूं, मेरा कितना रिस्क है? अगर मैं ये टेक्निक यूज करता हूं 5 मिनट चार्ट पे, कि जब वो मूविंग एवरेज के नीचे आके वापस ऊपर आ रहा है, मेरी एंट्री है 1851 पे, मेरा जो स्टॉप लॉस है वो बहुत कम हो गया. 2% तो मेरा यहां पे है. 2% तो मेरा यहां पे है. मैं 2% नहीं ले रहा, मैं मूविंग एवरेज के नीचे ही ले रहा हूं स्टॉप लॉस. मैंने अपना देना पीरियड को और छोटा कर दिया. नाउ व्हाट इज द रिस्क? दैट इज 6 into 54. यस, नो, मे बी. सबको चीज समझ में आई? ओके. अभी मेरा जो 2000 रुपए का रिस्क था वो घटकर रह गया है 324. ओके एलिजाबेथ, let's do it again. What I am trying to do is I am trying to shortening the dena period. I am shortening the difference between entry price and stop loss. According to the actual strategy which I told you 5-10 minutes back, I was supposed to enter here when it crosses 2% ऊपर and my stop loss was 2% नीचे, right? But now what I am doing is I am trying to shorten my dena period. So now I have used the concept of moving average कि वो green जिस दिन जिस मिनट, वो कौन सा मिनट है? That is this particular minute. इस मिनट इसने 2% ऊपर ग्रीन जोन में आ गया, इसने 2% क्रॉस कर दिया. उसके बाद I will wait patiently on a 5-minute chart. I will wait patiently on a 5-minute chart for it to cross below moving average and then cross above. जैसे ये cross above होता है, हम यहाँ पे buy करेंगे and this is my stop loss. Okay. Now if I was supposed to take 57 shares as per the 2000 risk जो मैंने लिया था, अब मेरा रिस्क 2057 शेयर्स के साथ ही 2000 से कम होकर 354 हो गया है. यस, नो, मे बी. सबको ये चीज समझ में आई? ओके चलो. नाउ हाउ अबाउट कि यहां से ये देखते हैं. अभी किसी ने मुझे बोला था कि स्टॉप लॉस ज्यादा लगेंगे. कौन कौन था? बिल्कुल सही बोला था आपने. सो विवेक वाज वन ऑफ देम. हु एल्स वाज देयर? दोज आर न्यू गाइज, आई सपोज. आई डोंट नो देम. या कि स्टॉप लॉस ज्यादा लगेंगे. बिल्कुल बिल्कुल. अगर हम डज इट वर्क ऑन ऑल टाइम फ्रेम्स? नो. टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट इंट्राडे गाइज. So I want to work on 5 minutes. Intraday and intra-week. It's like 4-5 days. सबका अलग अलग होता है. ये 2% सिर्फ इंट्राडे और इंट्रा-वीक में ही रहेगा. Okay? I will teach you about investing also. I'll try to cover up अगर टाइम बचा. Okay? Now यहाँ पे देखा कि इधर मेरा एक स्टॉप लॉस लग गया. राइट? यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे मेरा 354 के नीचे आ गया और मेरा स्टॉप लॉस लग गया. ऑलराइट? तो यहाँ पे I will exit. बट यहां से अगर ये वापस ऊपर जाता है सेम प्राइस पे, आई विल एंटर हियर अगेन. ओके. तो मतलब कि मेरा 354 का एक स्टॉप लॉस लग गया. क्लियर एवरीवन? यस, नो, मे बी. राइट? तो यहां पे मैंने एक्चुअल में क्या करा कि यहां पे मैंने बाय करा था, यहां पे मेरा स्टॉप लॉस लग गया. उसके बाद 5-10 मिनट बाद ये वापस ऊपर आ गया. मैं यहाँ पे फिर से बाय करूंगा और यहाँ पे मेरा एक और स्टॉप लॉस लग जाएगा. I am losing money. 354 plus 354. I am losing money. उसके बाद यहां से वापस ऊपर आएगा, मैं फिर से एंटर करूंगा देना पीरियड पे. तो दिस विल रिमेन द सेम. दिस वोंट चेंज. 1851 पे एंट्री, 1845 स्टॉप लॉस. इट्स लाइक 345 का स्टॉप लॉस मैं दही जा रहा हूं. क्लियर एवरीवन? नाउ इफ आई जूम आउट एंड लेट्स सी कि यहां पे मेरा सिर्फ 3 बारी. तो यहां पे ऐड, यहां पे स्टॉप लॉस, फिर उसके बाद यहां पे ऐड, यहां पे स्टॉप लॉस, उसके बाद यहां पे फिर से ऐड. तो मैंने 354 into 2, इट्स लाइक 700 रुपीज, 708 रुपीज का स्टॉप लॉस लिया. और प्रॉफिट कितना लिया? माय प्रॉफिट वुड हैव बीन कि ये वापस ऊपर आ रहा है. सो इट्स लाइक यू कैन टेक 6% आउट ऑफ इट, या फिर ये वापस नीचे आ जाता है, यू कैन एग्जिट हियर. तो अब आपने 1875 पे एग्जिट कर दिया. ऑलराइट? तो इट्स लाइक कि यहां से अभी एचडीएफसी बैंक है,
एचडीएफसी बैंक इंट्राडे में लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए था, दैट इज अ सेपरेट क्वेश्चन। उसके लिए हमें थोड़ा और एडवांस एनालिसिस करना पड़ेगा, हाउ टू चूज अ स्टॉक, ऑलराइट। बट फ्रॉम 1851 it went high till 1920, that's like it was like 3% 4%, ऑलराइट, 3 से 4%। और मेरा रिस्क कितना है, रिस्क मेरा इट्स लाइक 0.3% रिस्क रह गया है, क्योंकि मैंने अपना देना पीरियड छोटा कर दिया। सबको ये चीज समझ में आई? यस, नो, मे बी? टाइप इन जय माता दी। We'll take up other stocks. Guys, you need to understand what will be the percentage target. That is like it depends upon what you want to do. All right. How about if you would have done the same thing on Reliance? Same thing on Reliance. Reliance पिछले 2 महीनों से बहुत ऊपर, उसका जो RSI है, डेली RSI, that is above 50 for past 2 months. उन 2 महीनों में हर 5 मिनट के चार्ट में जब भी वो रेड लाइन के नीचे, तो इट वाज लाइक कि यू वुड हैव, यहां पे इसने ग्रीन सिग्नल दिया, ओके। अब ये ऊपर गया, ऊपर आने के बाद ये नीचे आया, नीचे बाद आने पे ये ऊपर गया, तो आई वुड हैव एंटर्ड, जब नीचे आके वापस ऊपर गया, तो दिस वुड हैव बीन माय एंट्री प्राइस, ओके, दिस वुड हैव बीन माय एंट्री प्राइस। जूम करके दिखाऊं, ये देखो, ये नीचे जाके ऊपर गया, this would have been my entry price. What would have been my stop loss? My stop loss would have been the swing low. ये वाला would have been my stop loss. ये मेरा देना पीरियड हो गया, ओके। देना पीरियड कितना है? 8 पॉइंट का, 1839 एंड 1831, 8 पॉइंट, ऑलराइट। अब यहां पे मेरा एक स्टॉप लॉस लगा, ओके। उसके बाद विदाउट एनी स्टॉप लॉस जो इसने 2% नीचे वापस आया, that was like after 20% or 10% gain, right? तो ये नीचे आया 2144, this was like 20x trade। जहां पे आपने 6 रुपए का रिस्क लिया, वहां पे आपको कम से कम 120% का प्रॉफिट हुआ, 120% कह रहा हूं, 120 रुपए का फायदा हुआ। तो दिस वाज रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो, आप इसका देखोगे, दैट विल बी 20:1। क्लियर एवरीवन? यस, नो, मे बी? इफ यू फील के मेरा ये जो स्टॉप लॉस पॉइंट्स है ये छोटे हैं, वो ये एडवांस जो ट्रेडर्स होते हैं वो इतना ही स्टॉप लॉस रखते हैं, छोटा ही रखते हैं, ऑलराइट। बट इफ यू वांट टू कीप अ बिग स्टॉप लॉस, तो नीचे वाला स्टॉप लॉस हटा दो, नीचे वाला स्टॉप लॉस हटा दो। इट्स लाइक के मूविंग एवरेज के ऊपर गया बाय, और 2% नीचे का स्टॉप लॉस रखो। तो इंस्टेड ऑफ बाइंग हेयर, यहां पे बाय करने की बजाय आपको थोड़ा सस्ता मिल जाएगा यहां पे, okay, you can take 2% stop loss as well. Clear everyone? Yes, no, maybe? Type in जय माता दी अगर आपको ये चीज समझ में आई। Okay, so let me quickly repeat what we learned today. What we did was that the motive was trading, intraday trading और छोटा, तो छोटा वो trading short time frames में होता है, alright। What we need to understand is कि हमारे को पहले define करना होता है हमें करना क्या है, right? Whether I want to buy HDFC Bank, Reliance, Nifty, Bank Nifty, or I want to sell, okay? उसके लिए the price action is the best thing, alright? तो आपको define करना है कि मेरा red zone है या green zone है। Green zone red zone से कब होता है? जब वो 2% ऊपर चले जाता है lowest point से, okay? और red zone कब होता है? जब वो green zone से highest point से 2% नीचे गिर जाता है, वो red point शुरू हो जाता है, ओके। तो अगर वो रेड जोन है, आपने बाय करने की कभी भी गलती नहीं करनी, आपने सिर्फ सेल करके चलना है। अगर वो ग्रीन जोन है तो आपने सिर्फ बाय करके चलना है, सेल शॉर्ट नहीं करना है, ऑलराइट। नाउ दिस इज वन थिंग कि आप पूरा पैसा डालो, 2% का रिस्क लो, दिस स्ट्रैटेजी हैज अ वेरी गुड एक्यूरेसी ओनली एंड ओनली इफ यू आर डूइंग इट इन ढाबा वन स्टॉक्स एंड उनका जो डेली RSI है दैट इज अबव 50। अब ये ढाबा वन स्टॉक क्या होते हैं और डेली RSI क्या होते हैं, जो लोग मुझे जानते हैं उनको समझ आ गया होगा, जो लोग नए हैं आई वुड एनकरेज देम टू join the my mic sessions that happens on Sunday at 2 o'clock. You can find all these videos on YouTube also, वहां पे भी आप देख सकते हो, okay? So it's like a ढाबा वन स्टॉक होना चाहिए, डेली RSI should be above 50, you should be looking to buy। ढाबा 3 स्टॉक होना चाहिए, डेली RSI should be less than 50, you should be looking to short। Clear everyone? Problem is to be strict on SL. Subodh ji, very good question।
कि प्रॉब्लम ये है कि स्टॉप लॉस में स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। अब इसके दो प्रॉब्लम, इसकी दो वजह होती हैं। ओके, तो आप स्टॉप लॉस पे स्ट्रिक्ट क्यों नहीं रह पाते, इसकी दो वजह होती हैं। एक कि आपके पास टाइम ही नहीं है, इट्स लाइक आप इसको ऐसे अपना सिस्टम के आगे बैठ ही नहीं सकते, तब प्रॉब्लम होती है। अगर ऐसा है तो आपको ये इंट्राडे नहीं करना चाहिए, आप चुपचाप इन्वेस्टिंग करो ढाबा वन स्टॉक में, बहुत पैसा बन जाएगा। डोंट थिंक ऑफ सेकेंडरी इनकम और एक्टिव इनकम, थिंक ऑफ पैसिव इनकम। ओके, अगर आपके पास ये टाइम वगैरह सब कुछ है बट डिसिप्लिन नहीं है कि आप उधर बैठे भी हुए हो बट आप 2% स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो करते, देन आई वुड एडवाइज यू कि आप अपनी क्वांटिटी कल से इमीडिएटली बाय 10 कम कर दो। सो इट्स लाइक कि अगर आप 200 शेयर्स लेते हो, आप 20 शेयर्स के साथ करो, राइट? डिसिप्लिन जो होता है ना, वो बनाना पड़ता है। दंगल में, पता है दंगल मूवी देखी है ऋतिक, उसने अपना आमिर खान जी ने बोला था कि चैंपियन पेड़ पे नहीं उगते, उनको बनाना पड़ता है मेहनत से, सीनियर से एंड ऑल दैट थिंग, राइट? सो दिस इज हाउ इट हैज टू बी। जो आपका स्टेमिना है, जो आपका इंड्योरेंस है, जो आपका डिसिप्लिन है, वो कम क्वांटिटी के साथ धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके बनेगा, और कोई रीजन और कोई चारा नहीं है जिससे पैसा बन सकता है। ओके, would you please let us know how to bring up the channel diagram that, okay, let's go back, let's quickly revise this thing. Okay, so ये बंद कर देते हैं, बंद कर देते हैं, बंद कर देते हैं, इधर जाते हैं tradingview.com। ओके, यहां पे मैं गया and I will search any stock. So how about if I search TCS? TCS is doing good. TCS, okay, so this is TCS। फुल फीचर चार्ट इसका खोलना है। आई एम गोइंग वेरी स्लो। फुल फीचर चार्ट खोलेंगे, एक नया पेज खुल जाएगा, उधर ऐसा सा चार्ट लग जाएगा। ऑलराइट, नाउ इसमें ये इंडिकेटर्स पहले से लगे हुए हैं क्योंकि मैंने सेव करा हुआ है। हम क्या करेंगे, हम जाएंगे FX में, विल गो टू FX, राइट? तो दिस इज फॉर्मूला, इंडिकेटर्स एंड स्ट्रेटजीज। इस पे मैं क्लिक करूंगा, इधर आई विल टाइप इन ट्रेलिंग परसेंटेज SL। ट्रेलिंग परसेंटेज आप लिख दोगे तो ये केवांश और ब्लिच, ही इज अ ट्रेडर इन रशिया, उन्होंने अपना स्ट्रैटेजी पब्लिक में डाला हुआ है। दिस इज अ सिंपल कोड अबाउट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, थैंकफुल टू हिम, राइट? आप इस पे क्लिक करोगे, वो एक इंडिकेटर लग जाएगा। ऑलराइट, जो बाय डिफॉल्ट इसका इंडिकेटर का ऑप्शन होता है वो इसमें 3% का होता है। ओके, हम इधर जाएंगे, इंस्टेड ऑफ 3, मैं इधर जब इधर कर्सर रखूंगा सेटिंग्स में आएगा, सेटिंग्स में इंस्टेड ऑफ 3 इनपुट्स में मैं जाके 3 की जगह इसको 2 कर दूंगा। ओके, तो दिस विल बी 2, राइट? आप इसकी सेटिंग, आप इसको थोड़ा थिक कर सकते हो, लाइंस को आप थोड़ा बड़ा कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, पंगे लेके देख लेना, आपको आ जाएगा। ऑलराइट, तो दिस वाज TCS गाइस। दिस इज वहां पे ग्रीन जोन जहां पे स्टार्ट हुआ। अगर यहाँ पे मैं मूविंग एवरेज लगा दूं, आई वुड हैव गॉट अ बेटर एंट्री। यहाँ पे आई वुड हैव एंटर्ड हियर, इसके हाई पे जब इसने मूविंग एवरेज के ऊपर गया विदाउट हिटिंग अ सिंगल स्टॉप लॉस। अब ये कल का ट्रेड्स हैं। ओके, यू ऑल यू हैव टू डू इज के स्टॉक सिलेक्शन में आपको 10 चीजें और देखना होता है, राइट? मैं आपको थोड़ा थोड़ा हिंट देता हूँ। ओके, सो दिस इज योर देना पीरियड, बिना स्टॉप लॉस हिट किए 20 पॉइंट का रिस्क, दैट इज लाइक 8% का रिस्क ऑन TCS। दिस इज वेयर यू एग्जिटेड 2289, दैट वाज लाइक 5 टाइम्स रिटर्न, 5% आपको मिल गया। ओके, हालांकि ये 7-8% ऊपर गया था, आप 6% का भी टारगेट लगा सकते हो, नहीं तो 5% आपको मिलता रहेगा। ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस करके देखोगे। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है? प्रॉब्लम ये आ सकती है, हमने प्रैक्टिस नहीं करी, हमने रिस्क मैनेजमेंट नहीं करा, हम वापस अपने वो ग्रीड और होप के जोन में घुस गए, या फिर हमने स्टॉक गलत चूज कर लिया। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड के स्टॉक्स कौन से चूज करने हैं, राइट? जैसे कि तो इट्स लाइक कि उसमें आपको ना, मैं आपको ऐसे बता नहीं सकता बिकॉज इट्स सच अ लेस टाइम एंड ऑल दैट स्टफ। you have to get deep into this. You need to understand volatility, momentum, trend indication. जो लोग पुराने हैं, जो मुझे जानते हैं, जिनको ये चीज समझ आती है, उनको मैं बोल देता हूँ कि ढाबा वन स्टॉक डेली RSI अबव 50 इज दैट स्टॉक जिसमें आपने लेना है। अब उसमें भी लेट्स से कि अगर 20 स्टॉक्स आ रहे हैं, यू नीड टू पिक दैट स्टॉक विच इज रनिंग, विच इज लाइक के बहुत एक्टिव ऊपर चल रहा है।
So daily RSI above 60 is also a good choice. All right, and you have to be patient about this thing. And as I tell you, okay, instead of doing intraday, if you enter in intraday and exit as per swing strategies जो हम करते हैं, positional strategies करते हैं, that will create you wealth. इंट्राडे से आप अमीर नहीं बनते हो, स्विंग ट्रेडिंग से आप अमीर नहीं बनते हो, पोजिशनल ट्रेडिंग लंबे रखने से आप अमीर बनते हो. जो इंट्राडे है या स्विंग ट्रेडिंग है वो आपको महीने महीने का खर्चा निकालते रहती है. इट्स लाइक कि अगर आप 1 लाख रुपया कहीं पे नौकरी करके कमाते हैं पर महीने का, आप ट्रेडिंग को भी 2 साल दीजिए, 3 साल दीजिए, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करें, 2-3 साल बाद आपका भी 1 लाख रुपया महीना आना शुरू हो जाएगा. बट वो घर का खर्चा होता है. वो इट्स लाइक दैट इज अ ट्रेडिंग इनकम, दैट इज नॉट वेल्थ. अगर आप उसी ट्रेडिंग इनकम से 1 लाख रुपया जो आपका महीने का आ रहा है उसको आप अगर इन्वेस्टिंग में नहीं डालते हो और भूल जाते हो, राइट, तब तक आप वेल्थ क्रिएट नहीं करोगे. द बेस्ट एग्जांपल इज रिलायंस, राइट. जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, आई मीन यहाँ पे भी काफी स्टूडेंट्स आए हुए हैं, प्लीज टाइप इन जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस किया कि दे टुक रिलायंस. 900 रुपए, 10,000 रुपए पे हमारी स्ट्रैटेजी बोल रही थी कि बाय करो, 1000 रुपए पे लिया, 1200 पे निकल गए, राइट. कि हमारा उस दिन खुश हो रहे थे और विद इन 2 मंथ्स वो 2200 रुपया हो रखा है, राइट. तो अगर आपने वो जो 1000 रुपए पे लेके 1200 पे आप जो निकले, right, you booked a 20% profit or whatever, 10% or whatever that profit was. If you didn't put a part of that profit into investing, so that's like कि फिर आप अमीर नहीं बन सकते, आप वेल्थ नहीं क्रिएट कर सकते. इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म, पोजिशनल ट्रेडिंग, 6 months, 8 months, lifelong investing is what creates you wealth. Or if you want to create wealth through investing, you need 3 things. One, you either need trading income या फिर कोई भी अदर इनकम. इट्स लाइक कि आप मोटिवेशनल वीडियोस देना शुरू कर दो, इट्स लाइक कि आप बेकिंग करना शुरू कर दो, कोई भी एक एक्स्ट्रा स्किल सेट जब आप टाइम निकालो, कोई भी एक एक्स्ट्रा चीज, आप ट्यूशन देना शुरू कर दो, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, राइट, कि आप कुछ ऐसा करना शुरू कर दो कि आपको वीकेंड्स पे भी पैसा आना शुरू हो जाए. आपको ऐसा कोई बिजनेस मॉडल बना लो कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो और फिर भी पैसा आ रहा है और सारा का सारा पैसा स्टॉक मार्केट में जा रहा है. तो यू नीड एडिशनल इनकम. ऑलराइट. सेकंड थिंग इज कि आप अपना जो अभी काम कर रहे हो उसमें मेहनत ज्यादा करो और वो सैलरी को बढ़ाने की कोशिश करो, या जो भी आप बिजनेस कर रहे हो उसको बढ़ाने की कोशिश करो, ताकि वो जो एक्स्ट्रा इनकम बने उससे आप पैसा स्टॉक मार्केट में डाल सको. एंड द थर्ड थिंग इज कि आप अपने खर्चे कम करने की कोशिश करो. इट्स लाइक फॉरगेट अबाउट आईफोन्स एंड ऑल, वैसे मेरे पास है, बट फॉरगेट अबाउट ऑल दीज थिंग्स एंड जस्ट पुट इन योर मनी इन स्टॉक मार्केट. So these are the 3 ways which is required. It's not about के ICICI के फंडामेंटल क्या है, कोटक के वो क्या है, वो सारा प्राइस एक्शन में आपको फटाफट आ जाएगा. वो 2 महीने का काम होता है सीखना. उसके बाद जब आप सीख लेते हो फिर आपको रियलाइज होता है कि यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है हर महीने डालने के लिए स्टॉक मार्केट में, तब आप उस पर काम करना शुरू करते हो. So it's important for you to have an additional source of income either by new skills or whatever you are doing, increase your potential, या फिर आप खर्चे कम करो. क्लियर एवरीवन? ओके, सो टाइप इन जय माता दी अगर आपको ये चीज समझ में आई. यस, सो वी हैव अ पेड वर्कशॉप आल्सो दैट इज स्टार्टिंग टुमारो. 8 बजे से लेके 10 बजे तक हमारे सेशन चलते हैं. 5 दिन और 11 दिन का सेशन है. मैं इधर आपको नहीं बेचूंगा, मैं आपको ना जो भी नए लोग हैं जस्ट डू वन थिंग कि आप यहाँ पे एक बारी मुझे मैसेज डाल देना दैट यू आर इंटरेस्टेड. आई विल सेंड यू द स्क्रीनशॉट, आई विल सेंड यू ऑल द डिटेल्स. ओके, तो सृष्टि जी हैं, सृष्टि जी मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम देखते हैं सारा. सृष्टि जी को आप मैसेज कर देना इस नंबर पे या जहां से भी आपको व्हाट्सएप या मेल आया है. ऑलराइट, आप उस पे मैसेज कर देना. आई विल सेंड यू ऑल द डिटेल्स अबाउट माई पेड वर्कशॉप दैट इज स्टार्टिंग टुमारो. इट्स लाइक 5 days and 11 days, जिसमें 10x और 20x 2 अलग प्रोग्राम होते हैं. एक में हम सारी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग सीखते हैं, दूसरी में वो सब तो सीखते हैं प्लस ऑप्शंस का सब कुछ सीखते हैं, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स ऑफ ऑप्शंस, एवरीथिंग वी लर्न इनटू दैट. फिर उसके बाद हमारे 4 महीने साइकोलॉजिकल सेशंस चलते हैं जिसमें वी वर्क ऑन द साइकोलॉजी. वी गिव यू एन इंडिविजुअल अप्रोच कि आप क्या कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो. सो इट्स अ 5 month प्रोग्राम. डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे मैं भेज दूंगा. ठीक है, लेट्स टेक अप क्वेश्चंस गाइस. जिसको जो जो क्वेश्चंस पूछना है पूछो धीरे धीरे. ओके, लॉन्ग टर्म स्टॉक. ऑलराइट, विनोद जी आप नए हैं,
विनोद जी आपने पहला सेशन लगाया कभी? नो, ओके, राइट गाइस। सो विनोद जी आपको ना एक बार थोड़ा संडे को टाइम निकाल के आप मेरे से मिलो एक बार, मतलब मैं जब सेशन लूंगा, इस संडे नहीं ले रहा हूँ, नेक्स्ट संडे, उसमें मैं आपको बताऊंगा होता क्या है। अगर आपको लॉन्ग टर्म स्टॉक्स चाहिए होता है ना, तो लॉन्ग टर्म स्टॉक्स में यू हैव टू फाइंड दीज टाइप ऑफ स्टॉक्स। इन्हें हम बोलते हैं ढाबावान स्टॉक्स, राइट। ढाबावान स्टॉक्स होते हैं जो हमेशा ऊपर चलते रहते हैं, और मंथली चार्ट, आपको मंथली चार्ट फॉलो करना है। ओके, सो इफ आई गो हियर, आपको ये टीसीएस कैसा लग रहा है? क्या ये मंथली लग रहा है? ढाबावान, ओके ओके, सो दिस इज ढाबावान स्टॉक, ऑलराइट। अब इसमें क्या करना होता है, इसमें जो आज हमने सीखा, आई होप आपको सारों को समझ आया कि आज हमने क्या सीखा। ओके, इसमें आपको जो वहां पे हमने 2% करा था, मंथली में आप 30% करोगे। कितना करोगे? 30%। ढाबावान स्टॉक में 30% कभी भी नहीं लगता, इट हैज टू क्लोज। इट्स लाइक कि जहां पे हमने 2% का रिस्क लिया था, यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेली चार्ट जो हम 5 मिनट चार्ट कर रहे थे, उसको हम मंथली चार्ट करेंगे। ठीक है, मतलब एक कैंडल एक महीने का। इसमें अब मैं सेटिंग्स में जाऊंगा, इंस्टेड ऑफ 2%, जो हम 2% कर रहे थे, इसको हम 30% करेंगे। ऑलराइट, और मूविंग एवरेज लगा दो। तो जब भी ये मूविंग एवरेज के नीचे, ग्रीन जोन में मूविंग एवरेज के नीचे जाके ऊपर आए, यू बाय एंड प्लेस योर स्टॉप लॉस एट 30%। दिस इज टीसीएस। अकॉर्डिंग टू दिस 2008 पिछले रिसेशन में ये 30% के ऊपर बाय जोन में आया था, और अभी भी ऊपर चल रहा है। नाउ यू आर लकी गाइस कि आप ये स्टॉक मार्केट टाइम निकाल के स्टॉक मार्केट सीख रहे हो, ये स्ट्रैटेजी सीख रहे हो, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, कोरोना की वजह से बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं जो बहुत ही अच्छे लेवल्स पे मिल रहे हैं। जैसे आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ग्रीन जोन में आया हुआ है, रेड जोन में आया हुआ है। जिस दिन ये ग्रीन जोन में आएगा, उस दिन आप जरूर खरीदना है इसको। ओके, बजाज फाइनेंस, राइट। और जब कोई स्टॉक गिरा होता है ना, सबको लगता है कि वो खराब है, उसका फंडामेंटल खराब है, उसका वो खराब है। चढ़ते सूरज को सलाम होता है, गिरते हुए की बाद में लोग बहुत बोलते हैं, राइट। ये सारे स्टॉक्स अच्छे हैं। तो दिस इज बजाज ऑटो, इवन बजाज फाइनेंस, वो मैंने लगाया नहीं। ओके, तो दिस इज बजाज फाइनेंस, राइट। इट्स ऑल्सो अ ढाबावान स्टॉक। लेट इट क्रॉस अबव 30, व्हिच हैज क्रॉस्ड, यू कैन बाय इट हियर ऑल्सो, या फिर मूविंग एवरेज के ऊपर आने की वेट करो। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? अदरवाइज टाइप इन जय माता दी, छुट्टी करें, बाय बाय करें, जो पूछना पूछिए। How can we learn about options? In which workshop? Sandeep ji, talk to Srishti ma'am, she'll let you know. Is this indicator available on Zerodha? No, it's a customized indicator. It's available free of charge on this thing. ये क्या है? tradingview.com. जैसे मैंने आपको बताया वैसे वैसे करो ना। Whether buying of partially paid shares good? Sri Kumar ji will take up on the family meet. How to apply this strategy on the start of the day? Let's say 9:20. So Hardik ji, you need to have scanners, which is covered in a paid workshop. Scanners होते हैं, बटन दबाया, लिस्ट आ जाती है कि कौन से स्टॉक्स हैं जो ये क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं। ऑलराइट, तो वो स्कैनर्स भी हम फ्री में, आपको फ्री में नहीं, पैसा लेते हैं पेड सेशन का, वो सारे 5 महीने में वो सब इंक्लूडेड होता है। बट अभी के लिए व्हाट वी कैन डू इज कि आप कोई भी 10 स्टॉक्स पकड़ लो या 5 स्टॉक्स पकड़ लो, ठीक है, जो आपके फेवरेट 5 स्टॉक्स है उसको पकड़ लो, उसको आप मैनुअली मॉनिटर कर, आपको स्कैनर की जरूरत नहीं है। रोज शाम को देख के जाओ कि इसने 2% कहाँ पे लेवल है, तो अगले दिन आपको पता होगा कि ये ग्रीन जोन में कब आ रहा है, और उसमें आप ट्रेड करो। तो यू डोंट नीड स्कैनर्स फॉर दैट, राइट। आप कोई भी 5 स्टॉक्स पकड़ लो जिसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी रखो। जैसे निफ्टी ने आज 2% नीचे चला गया, तो इट्स लाइक कल से आपका जो व्यू होना चाहिए वो सेलिंग होना चाहिए टिल द टाइम वो वापस 2% ऊपर नहीं चले जाता। ओके, क्लियर क्लियर हार्दिक जी? मोमेंटम दसो, मोमेंटम इज आरएसआई, मोमेंटम इज ऑल अबाउट आरएसआई। मोहन जी, ओके, आई विल टेक अप इन्वेस्टिंग लेटर। थोड़ा और क्वेश्चन अभी कर लेते हैं। व्हाट अबाउट वीकली चार्ट? वीकली चार्ट में भी सो इट डजंट डिपेंड। जो ये प्राइस एक्शन वाली चीज है ना, ये इस चीज पे नहीं डिपेंड करता कि वो डेली है, वीकली है, 5 मिनट का है। 5 मिनट और 15 मिनट दोनों या डेली या वीकली में सेम चीज दिखाएगा, राइट। जो प्राइस एक्शन है वो सेम रहेगा।
इज जस्ट दैट कि आप जितना टाइम फ्रेम छोटा करते रहोगे उतना आपको स्क्रीन के सामने बैठना पड़ेगा और आपका देना पीरियड उतना ही छोटा और बहुत ही प्रॉफिटेबल हो सकता है. ओके, हाउ टू स्कैन स्टॉक विच आर कमिंग इन ग्रीन जोन. लक्षित जी, आप अपने 10 स्टॉक चुनो, उसमें से आप मैनुअली स्कैन करो. डोंट गो बियॉन्ड 10 स्टॉक्स. Is it good time? Okay, is it good time? Long term buy in Yes Bank. Yes Bank. If you who's that? Vardhan ji. This is a Dhaba 3 stock now. I will never recommend you buying Yes Bank ever, ever. No buy, no point. And even if you want to buy, ठीक है, कईयों को लगता है कि यार ये और कितना नीचे करेगा, ये बिजनेस तो चल रहा है, ये ऊपर जा सकता है, जो कि जा सकता है. मैं कह रहा हूँ जा सकता है, बट मैं कम से कम ये जब तक इसका मंथली RSI 60 के ऊपर नहीं आ जाता तब तक तो मैं बाय करने की सोचूंगा नहीं, पहली चीज. बट अगर आपको अभी बाय करना है ना, आपको उसके लिए थोड़ी वो करना पड़ेगा, थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. पूछो क्या सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. आपको ऐसा करो, आप बाहर का खाना बंद कर दो. ओके, आप गाड़ी चलाना बंद कर दो. और लेट्स से कि आप अगर ड्रिंक करते हो तो ड्रिंक करना बंद कर दो. ठीक है, ये 3 चीजें बंद कर दो. 1 महीने में जितना पैसा बचेगा ये तीनों चीजें बंद करके उतने का येस बैंक खरीद लो. राइट, और भूल जाओ. वो तो वैसे ही उड़ना था, गाड़ी के पेट्रोल में उड़ जाना था, इफ यू आर ड्रिंकिंग ड्रिंक में उड़ जाना था, या फिर कोई भी हम अपना कोई भी XYZ चीज करते हैं उसमें उड़ जाना था, बाहर के खाने में पच जाना था. उसको आप 1 महीना सैक्रिफाइस करो, जितना पैसा बचाओगे वो येस बैंक में डाल दो. 0 हो गया तो क्या हुआ, अगर पैसा दे गया तो बल्ले बल्ले. क्लियर? So it's like sponsor your risk. I won't recommend you. You know, it's a Dhaba 3 stock. Never ever. Sir, can you please repeat the name of? I will. Vardhan ji, समझ में आया? Please type in yes, no, maybe. Is the 2% risk on total portfolio or share price? It's the same thing, Elizabeth ji. So 2% risk on the portfolio and on the stock price is the same thing. It will come around that level only. Right? So it's like if I'm taking a risk of 1 lakh, so 2% is 2000. If I'm taking 100 shares and my stop loss is 98, my risk will be 2%. अगर मैं सारा 1 लाख का माल ले लेता हूँ तो it will be 2000 only. Recent close से क्या मतलब है? Recent close से मतलब होता है कि जैसे जैसे ये नीचे गिरा, so this is my recent close. Okay, अब ये वापस ऊपर आया और let's say मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया, तो यहाँ पे मैं बाय करूंगा और जो भी इसने लोएस्ट क्लोज बनाया था, this will be my stop loss. इट्स लाइक बाउंसिंग बॉल. आपने सारों ने बॉल देखी है, राइट? बॉल होती है, नीचे गिरती है, फिर ऊपर आती है, फिर नीचे गिरती है, फिर ऊपर आती है, फिर नीचे गिरती है, फिर ऊपर आती है. राइट, दिस इज हाउ बॉल बाउंसेस. राइट, बट अगर यहाँ पे इसको मैजिक हो जाए, इसमें एकदम से जान आ जाए. इंडिया में जान और मैजिक कहाँ से आता है, कोई बता सकता है? पैसों से. यहाँ पे FIDI की बाइंग आ जाए, यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स की बाइंग आ जाए, किसी की भी बाइंग आ जाए, बस पैसा आ जाए तो इसमें एकदम से जान आ जाएगी. राइट, और जहां से भी ये 2% ऊपर क्रॉस करेगा या फिर मूविंग एवरेज क्रॉस करेगा वहां पे बाय कर लेंगे. और जो फ्लोर था, दिस विल बी आवर स्टॉप लॉस, और यहां से हमारा देना पीरियड डिसाइन हो जाएगा. क्लियर? कैन वी अप्लाई दिस स्ट्रैटेजी इन फ्यूचर? भावुक, यस यू कैन. आई वुड से 1 मिनट डू इट. सो जो आज हमने सीखा ना भावुक, यू नो, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि ये जो ग्रीन जोन रेड जोन है ना, दिस इज अ न्यू थिंग. ओके, तो ग्रीन जोन में आप बाय करना स्टार्ट करो और अपनी वाली स्ट्रैटेजीज है जो हम करते हैं वो लगानी शुरू कर दो. 1 मिनट, 5 मिनट, जैसे भी आपको करना है, एंड दिस विल गिव यू बेटर रिजल्ट. तो इट्स लाइक ए ग्रीन जोन डिफाइंस के अपने को बाय करके चलना है. ग्रीन जोन इज लाइक इंट्राडे में ढाबा 1 बन गया. ठीक है बाबू? रिकॉर्डेड सेशन यू विल गेट बाय टुमारो. आई विल ट्राई टू पोस्ट इट ऑन यूट्यूब. ठीक है, तो वहां पे यू विल गेट दिस रिकॉर्डिंग. Okay, I am not taking any other stocks here. खुद आप प्रैक्टिस करो. Want to repeat session tomorrow, विभो जी? Those who are old students, वो अगर सेशन फिर से करना चाहते हैं, आपको पता है किससे बात करनी है, करो उनसे बात, मेरे से मत पूछो. 61 से पूछो. You are most welcome to allow that session. Right? So tomorrow we are having a paid session starting up at 8 o'clock. उसकी भी लाइव सेशंस होंगे, उसका भी रिकॉर्डिंग्स आपको लाइफ टाइम मिलेगी. Things like that. Contact Srishti ma'am, she'll let you know. Does this strategy allowing in India market? It works everywhere, Neil. So this strategy works everywhere.
Where do you want to do? Let's talk about Apple. This is Apple. You use 20% वाला thing, 2% वाला thing on intraday. Apple में भी काम करता है. कोई स्टॉक लगा लो. तो दिस इज डेली चार्ट. लेट्स पुट अ 5 मिनट चार्ट, क्योंकि आज हमने इंट्राडे की बात करी है, राइट? तो दिस इज इंट्राडे, दिस इज 5 मिनट चार्ट. एप्पल में भी काम करेगा. ओके, इफ यू वांट टू डू गोल्ड फ्यूचर, अपना जो अपना एमसीएक्स का गोल्ड है, कमोडिटीज या ये सब करते हैं हम. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट गोल्ड फ्यूचर. दिस इज गोल्ड फ्यूचर्स 5 मिनट चार्ट, एमसीएक्स. ओके, तो यहाँ पे इसने देखो भाई साहब, ये तो आया ही नहीं नीचे. गोल्ड ज्यादा ही भाग रहा है आजकल, मैंने देखा ही नहीं. तो दिस वाज ऑन 7th of July. यू वुड हैव एंटर्ड व्हेन इट क्रॉस 2%. उसके बाद यहाँ पे जब मूविंग एवरेज के नीचे आके वापस ऊपर आया था, दिस वाज दैट लेवल जहां पे आपने बाय करना था. उसके बाद आपका स्टॉप लॉस नहीं लगा और अभी तक बाय करा हुआ है. एंड दिस ट्रेड इज लाइक 30x ट्रेड, बहुत ज्यादा दे गया ये. तो दिस इज लाइक यू नेवर नो भगवान ने कब देना है, बस आप लेने वाले बनो प्रैक्टिस कर करके. सर आपके साथ वर्कशॉप बहुत अच्छे हैं, नॉलेजेबल होते हैं. श्योर 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 वरदान जी, मोस्ट वेलकम. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. डज दिस स्ट्रैटेजी अप्लाई? ओके 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 ओके. in your page that is not already okay. Ankit, what, so I don't know about YouTube, but I know one thing, that YouTube is something जिसमें आपको सिर्फ स्ट्रैटेजी समझ आता है. आपको रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और आइडियोलॉजी बिहाइंड के कौन सा स्टॉक किस दिन लेना है वो समझ नहीं आता. आज तक मैंने कोई भी ऐसा चैनल नहीं देखा है यूट्यूब में जो सब ऐसी स्ट्रैटेजी, जैसे मैंने अभी आपको स्ट्रैटेजीज बताया, ऐसे ही वो वीडियोस पोस्ट करते हैं, राइट? एंड यू ऑल आर गेटिंग इम्प्रेस्ड विद दिस थिंग, दिस स्ट्रैटेजी. बट आपको इवेंचुअली पता चलेगा कि ये स्ट्रैटेजी एक बहुत छोटा पार्ट है. गोल्ड में अभी आप जैसे गोल्ड की बात कर रहे हो, स्ट्रैटेजी ने तो बोला यहाँ पे बाय कर और यहां तक रख, कितना पैसा बन गया, यू आर इम्प्रेस्ड. बट क्या बाय कर पाते? क्या अगर आपने यहाँ पे बाय करा तो यहाँ पे जब नीचे गिरा था तो आप कहीं बेच तो नहीं देते? कि यहाँ पे आपको लगता तो कि यार बहुत प्रॉफिट हो गया या कुछ भी. So these things, psychology things, that is covered in this workshop. Hand holding is covered in this workshop. So this workshop is the paid workshop, and that is not for 5 months. This is for your lifetime. हमारा एक family group है. I stay connected with all these guys. New learnings always shared. मतलब सब कुछ फ्री में होता है. It's like I want to create an ecosystem where people are making money. Only then my efforts of doing this thing will be like a अच्छा रिजल्ट मिलेगा. इट्स लाइक अपन, मेरा तो मानना भाई ये है कि कृष्ण जी ने बोला है कि कर्म अच्छा करो, फल अपने आप अच्छा मिल जाएगा. ऑलराइट? एंड कर्म तभी अच्छा होगा इफ आई एम नॉट स्कैमिंग यू एंड इफ आई एम टीचिंग यू समथिंग रियली गुड एंड फैंटास्टिक. ऑलराइट? एंड आई हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स इन स्टोर्स फॉर माय एनडीपीएमएस फैमिली. हम इसे एनडीपीएमएस फैमिली बोलते हैं. बहुत चीजें आ रही है, एल्गो सिस्टम्स आ रहा है, बहुत अच्छे अच्छे सिस्टम्स आ रहे हैं which will be on the family's way. Okay, YouTube का नाम है अपना NDPMS. YouTube लिख दो, आ जाता है. So this is NDPMS mentorship program is my YouTube channel. So this is the channel. यहाँ पे आप देखोगे मैं चमक रहा हूँगा. तो यहाँ पे कल सुबह तक आपकी एक वीडियो पोस्ट, ये वाला वीडियो पोस्ट हो जाएगा, आप वो देख लेना. ओके, इन्वेस्टिंग. ओके मोहन जी, डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन यू इन्वेस्टिंग. RSI 14, मनसिमरन जी 14. फॉरेक्स में भी चलता है संदीप जी. Is it possible to find FI DI into market action using price action? No. Subbarao, that's very tough. No, not at all possible. हालांकि on a monthly time frame it is possible, on a higher time frame it is possible, but to use this information, whether FI or DI is buying or selling, and to use that to trade, that is very difficult. You can do it for investing, but not trading. Harjinder ji, Yes Bank's purchasing is like I don't think it's a lost cause. Yes Bank is a Dhaba 3 stock. कहते हैं ना कि कोठिया बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, बट बिगड़ने में बहुत जल्दी इज्जत और कोठी, राइट? इट्स लाइक येस बैंक. 500 करोड़ से अगर 50,000 करोड़ का कोई बैंक हुआ है, दैट इज अ वेरी गुड थिंग.
बट 50,000 करोड़ से वापस 500 करोड़ का हो गया। आई एम जस्ट गिविंग यू नंबर्स, राइट? ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ, मतलब यस बैंक मुझे नहीं पता कितने से कितने का हुआ है, बट अगर 50,000 करोड़ से 500 करोड़ का हो गया है, फॉर इट टू गो बैक टू 50,000 करोड़ इज वेरी टफ, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर ये 12 रुपए का आपको मिल रहा है ना, उसके पीछे कोई रीजन है। कोई भी FII का मत मेजर होल्डिंग नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज फंडामेंटली देयर सम प्रॉब्लम जो हम नहीं पकड़ पा रहे हैं, बट फिर भी हमारा दिल तो बच्चा है, हमारा मन करता है कि इसको खरीदने का, राइट? तो अगर आपको खरीदना है, आपको सैक्रिफाइस करना चाहिए। दैट्स माय थ्योरी। इट्स लाइक वॉट एवर यू वॉन्ट टू स्पेंड ऑन फालतू का चीज, तो एक महीने में अपने खर्चे कम करो। फालतू की कोई भी चीज, फालतू नहीं मतलब इट्स लाइक लग्जरी विच इज योर वांट नॉट नीड, वो आप कम करो। जितना पैसा बचेगा उसका यस बैंक खरीद लो और भूल जाओ। अगर उसमें 1200 का 12 रुपीज का 1200 हो गया, आपका पैसा बन जाएगा। ऑलराइट, this 2% doesn't look appealing on option with bigger lot size. Of course we have to cut down that. Either you need, Ashish ji, either you need a big portfolio. So if you want to do it on lot size, 2% of futures, you want to do that. So you need a capital of at least 10 lakh rupees. 10 lakh का 2% होता है 20,000. Then only you can do this. If not, then अगर आपने नहीं करना और क्वांटिटी बढ़ाना है, तो आपको जो स्टॉप लॉस है उसको छोटा करना पड़ेगा। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया, आज हमने जो सीखा था उसमें क्या सीखा था कि 57 शेयर्स ले रहे थे और जो हमारा रिस्क था वो 2000 से 354 का रह गया। बट अगर हम रिस्क को ही 2000 कर ले तो हम एक लॉट साइज ले सकते हैं। क्लियर? क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो गया। यू कैन डू दैट ऑल्सो। वो मैंने जानबूझ के नहीं बताया, बिकॉज दिस फ्री वर्कशॉप में ना काफी नए लोग आते हैं, एंड आई डोंट वांट टू स्पॉइल माय नेम बाय इंट्रोड्यूसिंग देम टू फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। दोज आर फ्यूचर्स और ऑप्शंस एक ऐसी चीज है कि अगर आपने बहुत सारी प्रैक्टिस नहीं करी है और आपके पास मिनिमम कोई पोर्टफोलियो नहीं है, प्लस आप प्रॉफिट में नहीं चल रहे हो इक्विटी से कर करके, तब तक फ्यूचर्स ऑप्शंस नहीं करना चाहिए। दैट्स अ शॉर्ट वे ऑफ गेटिंग योर पोर्टफोलियो जीरो। Okay, so you have to be very patient. It's like a futures and option is like Sachin Tendulkar going to Pakistan to play, things like that. All right, okay. मोहन जी ने बोला था investing, that's the last thing जिसमें मैं आज चार्ट्स देखूंगा. Okay, then we can talk about the other questions or everything. All right, so suppose we were talking about gold. All right, क्योंकि gold का चार्ट खुला हुआ है. We go on to the monthly chart. Okay, ये continuous chart है. Okay, so this is gold. All right, now what I need to do is okay, instead of 2% I will use 30% as my stop loss, वो 30% वाला. So investing is कि जो हमने 2% का जो हमने इंडिकेशन लगाना था वो 30% का लगेगा. All right, तो अभी ये चार्ट ज्यादा बना नहीं हुआ है क्योंकि ये फ्यूचर्स का है. Let's talk about some other stock. How about if I talk about, give me any good stock. It should be a Dava stock. मोहन जी आप बताओ. CDSL. ओके, लेट्स टॉक अबाउट CDSL. सो CDSL सरकारी है. CDSL सरकारी है मोहन जी. CDSL सरकारी है क्या? यस, नो, मे बी. P Pfizer. ओके ओके, लेट्स टॉक अबाउट P Pfizer. निधि जी, आई विल टेक कोटक बैंक ऑल्सो. तो दिस इज P Pfizer. इसका ग्रीन जोन यहाँ पे स्टार्ट हुआ. ऑलराइट, and this is the green zone. You should have bought it here at 2155. right now डबल हो गया है within 2 years, और अभी जो आपका स्टॉप लॉस है वो इधर चल रहा है. तो 3399 के नीचे क्लोज होगा, वहां पे आपने सेल करना है. ट्रेडिंग की तरह टच करके अगर ऊपर चला जाता तब नहीं, आपको महीने के एंड में वेट करना है. दिस वी विल कवर लेटर, समटाइम लेटर ड्यूरिंग द स्माइल. so this was all today, was all about trading, you know. इन्वेस्टिंग का संडे को 2 बजे, इस संडे को नहीं, नेक्स्ट संडे से स्टार्ट करेंगे. आई विल टीच यू इन्वेस्टिंग आल्सो. ओके, so this P Pfizer. Let's talk about Kotak Bank. Kotak Bank is a very good stock for investing. It's a Dhaba one stock. All right, अभी भी इसका कोरोना टाइम के बावजूद ये अपने 30% के नीचे बंद नहीं हुआ है. तो दिस इज दैट जोन, यहाँ पे आपने बाय करना था, यहाँ से ऊपर चल रहा था. नाउ अब अगर हम अभी बाय करना चाहते हैं, इट्स लाइक यार अभी तो पुराना हो गया, अभी बता अभी कौन सा बाय करना है. संडे को मिलेंगे 2 बजे, उसमें डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, फॉर दैट वी नीड टू understand certain other things. Momentum videos are there on YouTube, you can do that also. And I'll see you on Monday, Sunday.
2 o'clock next week. Okay, any other questions? If not, type in Jai Mata Di, छुट्टी करें, bye bye करें, good night करें, and I'll see you next Sunday, most probably tomorrow. If anyone wants to join, please join, most welcome. It's gonna be fun. You'll get the recorded session for your lifetime. और वो रिकॉर्डेड सेशन लाइव सेशन ऐसी जैसे मैं बात कर रहा हूँ लाइव होगा, ऐसा नहीं कि मैं वीडियो चेप दूंगा, मैं ही बात करूंगा. विल टेक अप क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन. ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन. अच्छा गाइज, वन मोर थिंग, सॉरी आई फॉरगेट दिस. अगर आपको ये वर्कशॉप अच्छा लगा, फेसबुक पे जाने का, यूट्यूब पे जाने का, जहां पे भी एनडीपीएमएस मिले उसको लाइक करने का, उसके बारे में अच्छा अच्छा बातें बोलने का. ऑलराइट, and on Sunday I will give you the list of Dhaba One stocks also. Okay, so if you want Dhaba One ka stocks, I will give you that also, the list also. All right, chalo, thank you so much. Bale bale, very good evening. Have a fantastic evening. Bye bye.